Hi everyone. Hello, good evening, everybody, and we are Mamma mia, welcome we you are all. back. Yeah, we are back Post roaring for high with. away guys. Break is over, brother. It's Yeah, break is 5:30 over, हो चुका है. Anush. Yes. Thank you very. Thank you so much. Yeah. So And break is over and okay. श्वेता हमें थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा because सबसे बड़ा इवेंट अब आने वाला है. Let's talk. So before that, what I'll do is I'm gonna run through the films that we have screened today. Yeah. So yeah, let's start with BIFF लास्ट शॉर्ट फिल्म्स. हमने जो जो फिल्में चलाई हैं उनके बारे में मैं एक बार बता देता हूँ. द फिल्म्स आर द ओपनिंग फिल्म वाज डुग्गी फ्रॉम इंडिया, directed by Sagnik Chatterjee. A big yes, congratulations to you, sir. Bamboo Ballads from India, Sajid Nadu Thodi. Kukli from India, directed by Mr. Shyam Sundar. A beautiful film. A Guardian Before the Mirror from Colombia is the official nomination, guys, but due to some technical reasons, we couldn't screen it. And directed by Andre Ricorte and Martin Ramirez. Congratulations to you both. Defenseless from USA, directed by Xavier Augusto Nunez. So, Mr. Nunez, congratulations to you. And Shweta, over to you, BIFF short film category. Can you please tell us what the yeah. films Thank that you, we have seen? Saurabh. Thank you so much, Saurabh, and congratulations to all the officially nominated films, those who are in the category of last short films. And now I come up to official nominated short films, and they were Click Next to Continue from USA by Abdul Zone Jackson. Jackson. And next film was In Tune, that is from Mexico by Elizabeth Marlowe. Gaia from Brazil by Kadu Zergalio. Next was Rebirth of Hitler from India by M.S. Tripathi. And the last film was The Leaving Room by Ellie Rose, and it was from China. Yes, our very own Gadu Zergalio. I miss him already. Yeah. So, Okay. Saurabh, we should inform our audience about the upcoming event now. Yes, yes, Yes. yes. So, before we start off with that, I have few lines for the person who will be on screen in some time. उनके लिए कुछ Okay. लाइनें हैं कि जीवन को अंकुर दे, जीवन को अंकुर दे, माँ बनकर उर्जित हो, घर की मर्यादा हो, परंपरा और उन सब का वादा हो, प्रेम के सानिध्य में खुशी का इरादा हो, जीवन को परिभाषित करती हुई तुम एक निबंध हो. मेरे ख्याल से आपको Wow. इशारा मिल गया होगा. आई एम सॉरी, आई मिस्ड फ्यू वर्ड्स, बट यस, मैं आई एम क्वाइट ओवरवेल्म्ड एंड क्वाइट एक्साइटेड टू मीट दिस पर्सनालिटी बिकॉज शी इज लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. She set some example for for us, we the female of actually India and all over the world. She is a self-made Exactly. person, so I need you to introduce her. Definitely, I'll introduce her. And before that, we are getting comments from Priyanka Rana, and she's saying hello everyone. And she has have written a very good message. I am a short film director. Do get in touch with me, everybody, as now we will be starting casting soon for my feature Oh, film. wonderful. So, Count me in. so Count me we in. have casting already started for the films. So, guys, just connect to Miss Priyanka Rena through this Yes. BIFF Bollywood International Film Festival. Yeah. Sort of, we were talking about the person who will be sharing Exactly. the screen with us, Exactly. and who Exactly. is she? So, ladies and gentlemen, none other than Pratibha Sharma ji, chairperson and founder of BIFF, Bollywood International Film Festival. It's her idea, it's her baby, and हम सब उनके इर्द गिर्द काम कर रहे हैं. And she is a mentor. So, NSD alumni, actor, writer, director, producer, and a wonderful person. Have done lots of shows, stage shows, theater shows, or TV shows, films,
and recent में their film just got released Yeah. is Das Capital, and I hope you remember. मैं ही उसमें host था. I was the host of Das Capital. Let's talk. So it's an honor to have her with us. Can we have Mrs. Pratibha Sharma ji with us? Okay. I think we have to give her a big round of applause. Actually, yes. बहुत बड़ी करना पड़ेगा. personality है. बहुत बड़ी मालिक आ रहे हैं, मालिक आ रहे हैं. Guys, she is a multi-faceted, multi-talented personality, and she was a former announcer in radio. She is a beautiful actress. She is a beautiful human being. Yeah. She has done stupendous work in Das Capital. अब जिनके बारे में हमारे सौरभ जी, हमारे हसमुख जी आपको बता रहे थे. और आमो आखा एक से एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री है जो इन्होंने प्रोड्यूस भी की है. और we are actually hoping that soon we are going to present that before you, but as the time permits. So we are waiting for ma'am to come on the screen, and till then जब तक ma'am आती है सौरभ, तब तक कुछ पढ़ लेते हैं हम. अरे वाह, clap clap clap. Now this is what is happening when we do the online show. I just got reminded that Archana just cracked some of the questions that you have asked. हम आपके हैं कौन? I think Archana said कि आपने पूछा था ना इंग्लिश में. Yeah. Okay. Yes. Okay. So Archana, okay, you were right. You were correct. Who are we to you? कौन है हम? हम आपके कौन हैं? ठीक है. हम आपके हैं कौन? Yes, we are mentioning you. हम आपके हैं कौन? Yes, who are we to you? Okay, that's a very crispy kind of a word. I don't know. इंग्लिश में कितना गंदी लगती है हिंदी फिल्में के टाइटल्स कितने खराब हो जाते हैं. गुलाम मीन्स स्लेव. इट लुक्स लाइक ये बहुत ही क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक मूवी होगी, बट व्हेन यू सी गुलाम इट्स अ फुल ऑन कमर्शियल फिल्म, एंड दैट टू ऑफ नन अदर देन मिस्टर आमिर खान. सौरभ, अर्चना जी ने तो कुछ सही जवाब दिए ही हैं, लेकिन मेरा ख्याल अगर हम स्क्रॉल डाउन करें कुछ कमेंट सेक्शन में नामों को, तो बहुत सारे ऐसे हैं हमारे ऑडियंसेस जिन्होंने एक बार में ही तीनों सही जवाब दिए हैं. तो गाइस, दिस इज नॉट अ कॉम्पिटिशन, दिस इज जस्ट अ फन टाइम विच वी आर शेयरिंग विथ यू ऑल. सो करेक्ट आंसर्स जो है आप लोगों के में से ही हमें आए हैं. तो एक जवाब आपने दे दिया है, हम आपके हैं कौन, जो जीता वही सिकंदर. और दूसरा कौन सा था सौरभ, if you remember that? I forgot. I don't remember. I'm almost like feeling like Gajni. दिल है कि मानता नहीं. The heart refuses to listen. So now, if we check with our technical team, can we have प्रतिभा मैम आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, हम भी ऑडियंसेस भी, क्योंकि ऐसी हस्ती जिन्होंने अपना इतना महत्वपूर्ण वक्त अपनी एक्चुअली जो जिंदगी है सिनेमा के ऊपर कंट्रीब्यूट की है, उसे कितना यू हैव एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड योर टैलेंट, योर लव, योर अफेक्शन टू दिस आर्ट एंड क्राफ्ट. आप इतने अच्छे एनजीओज चलाती हैं, and we are actually definitely waiting for you to come on the screen. Saurabh, what do you want to say about it? And she has worked really hard for this also, this festival. I mean, I've met her जब फेस्टिवल की स्टार्टिंग हो रही थी, then we were planning it a big huge. और अभी भी खैर हम वर्ल्ड वाइड हैं, thanks to our technical team. We are worldwide, and thanks to Restream. I'm gonna mention it. I think they have paid me something. कुछ तो पैसे दिए हैं. They have paid me. Yes, I have got money from Restream to take their names. Restream वालों मेरे पैसे बढ़ा देना. Okay. So yes, on Restream we are using it as a platform. Or this is her idea, I think, and I talked to her, and then she was very precise कि भाई हर तरह की फिल्में आनी चाहिए, कोने-कोने से फिल्में आनी चाहिए, और उन फिल्मों को हम ज्यादा मौके दें जिनको कोई दिशा नहीं मिलती. उन फिल्म मेकर्स को हम इस प्लेटफॉर्म पे लाएं जो बहुत छोटे-छोटे शहरों से हैं, फ्रॉम वेरी स्मॉल टाउन्स, फ्रॉम रूरल एरिया ऑफ इंडिया. तो दैट वाज अवर मेन फोकस कि ये फेस्टिवल के पीछे, आई थिंक दैट इज हर मेन कंसर्न कि अच्छे फेस्टिवल्स हों, ट्रांसपेरेंट हों,
देयर शुड बी नो पार्शियलिटी और समथिंग कि भाई मेरे दोस्त की पिक्चर है. बिल्कुल. और एंड सो दैट वाज, हाँ, बॉलीवुड दैट वाज अ इंटरनेशनल मेन फिल्म कंसर्न. फेस्टिवल. जी. ये या जो हम फेस्टिवल कर रहे हैं, दिस BIFF, दैट इज बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, एक्चुअली वी आर सेलिब्रेटिंग आर्ट इन सिनेमा. तो ये बहुत ट्रू एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. Yeah, so we have come up with such beautiful films all over the world. ये हम इसलिए मेंशन करते हैं आप सबके साथ दोस्तों, क्योंकि ये जो प्यार है, ये जो मेहनत है आप सबकी इन फिल्मों को बनाने के लिए, उसे एक्नॉलेजमेंट मिलना ही चाहिए. क्योंकि किसी एक के हाथ में बिल्कुल फिल्म बनाना नहीं होता. एक फिल्म बनाने के लिए पीछे बहुत से लोग होते हैं. और जब किसी फिल्म को एक प्लेटफॉर्म इस तरह का, जो कि बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी कि BIFF देता है, तो उसकी सार्थकता, उसको एक स्पाइन मिल जाती है to move ahead, and it's रिकॉग्निशन. a kind of an appreciation. Yeah, जी, it's a kind of an appreciation. Every डेफिनेटली time one डेफिनेटली wins an डेफिनेटली. award or not, it's not ओके. required, it's not needed. Yeah. या Shweta, what do you think is the most necessary component of filmmaking? It's a rapid fire. Don't think too much. Jaldi bolo. You have to be creative. You have to. You did not tell me that it is a creative this thing. You just generally asked me, so I am answering you. All right, I'm quite fast that way. So one has to be very creative if you want to make a film. If I am not wrong. Okay, so one has to be very creative, but what is the basic component? Component क्या है? क्या चाहिए होता है एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए? सबसे ज्यादा जरूरी Story. क्या चीज है? Story. Exactly. Oh, you're smart. So Oh, smart. don't try to test me, Saurabh So ji. smart. No, but what happens now, normally when you ask people what is the most important thing, they say money. So I Oh, just but thought कि that is, yes, that is very important component altogether. बिल्कुल है. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. उसको आप दरकिनार नहीं कर बिल्कुल सकते, बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते. बिल्कुल नहीं इग्नोर कर सकते हैं. जी जी बिल्कुल. जी. And then see what's happening is कि okay, I think we have Pratibha I, ji with yeah. us. The third window is opening. So Oh, guys, wonderful. let's get ready. Good evening, Yeah, ma'am. let's go. Yeah, I can't see her I think now. Okay, I yeah, can see yeah, her. she is. Okay, clap, 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 clap. Thank you, ma'am. Thank you so much. आप आए, बाहर आई. और So her मैम, voice is not. we can't hear you. Yeah. आवाज आवाज आवाज. हाँ, थोड़ा पास लीजिए उसको. No, I think the Okay. laptop connection. Yeah. हाँ, कोई गाइड करो उन्हें प्लीज. Yeah. So, ladies and gentlemen, we have Pratibha Sharma ji with us, chairman and founder of Bollywood International Film Festival. And I yes, think so. ma'am. Yeah. Okay, now we can hear you. Yes, please. I cannot hear her. Okay. You take on to this, Saurabh. Okay, our technical team, please, can you guide them? Can you guide her? गाइस, जिसका चेहरा इतना खूबसूरत है, उनकी आवाज तो कितनी सुरीली होगी, आप इमेजिन कर सकते हैं. एंड इनको देखते ही एक वाइब्रेशंस, एक 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 काइंड ऑफ एंथुसियाज्म और एक काइंड ऑफ शी इज सो रेडियंट, शी इज सो वाइब्रेंट. जब वो बात करती है तब आपको लगता है कि Yes. बात हो रही है. शी इज सो फुल ऑफ नॉलेज. आप Yeah. इनसे जब बात करेंगे, मतलब आई विल बी शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, बट I'm quite excited to talk to her, Saurabh. I think that there is some technical issue I with just her on want to the say, sound side. yeah. Oh, that will be taken care of. मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ भाई, मालिक आ गए. तो अभी the boss is here. So I don't think so. Yeah. Okay, so finally, okay, मैम. बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम. स्वैग से स्वागत हो रहा है आपका. फिर से आवाज चली गई मैम आपकी. Okay. She can go. She can just come again if she.
So guys, this happens, this happen, ये होता है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तो इसका वही होता बुरा मानने का है एग्जैक्टली। नहीं। तो जब तक कुछ चीजें हमारे नहीं, हाथ बुरा भी मान के होती हैं, कुछ नहीं कुछ कर चीजें हमारे सकते हाथ आप। में नहीं होती। जी जी जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और आप देखिए एक विडंबना कि बॉस के पास ही आवाज नहीं जा रही है, बॉस की आवाज किसी को नहीं आ रही है। दिस इज व्हाट हैपेंस। ये मुझे लग रहा है ना टेक्निकल वालों ने कुछ शैतानी करी है। नेवर माइंड नेवर माइंड नेवर ओके माइंड, ओके ओके। बल्कि हम कुछ फिल्मों के बारे में ही बात कर या लेते हैं। और ये बताओ सौरभ, जब तक मैम कनेक्ट होते हैं, उनका साउंड हमारे पास आता है, आप बताइए कि आपकी कौन सी फेवरेट मूवी है। जी मेरे ख्याल से सवाल ऐसा होना चाहिए कि लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर मीन्स चलो ये साल ही, जो लॉकडाउन का ही पीरियड था, आई एम लाइक फिल्टरिंग डाउन द क्वेश्चन एंड फनलिंग डाउन द क्वेश्चन फॉर यू। ओके इन 9 महीनों में, 10 ओके। महीनों में दैट्स अ वेरी आपने ट्रिकी कौन कौन क्वेश्चन। सी फिल्में देखी? या मैंने कौन-कौन सी फ़िल्में देखी? मैंने लगभग मोस्टली तो सारी फ़िल्में देखी है जो टीवी पे आती हैं एंड स्पेशली हमारी जो हिंदी चैनल्स में तो साउथ की फ़िल्में बहुत ज़्यादा आती हैं। तो आई वॉच्ड एवरी मूवी, चाहे वो गुंडाराज ओके। हो, चाहे वो गुंडाराज 1, 2, 3 हो, चाहे वो खिलाड़ी नंबर 1, 2, 3 हो या डॉन नंबर 1, 2, 3 हो। एंड देयर आर सो मेनी सीरीज़। आई मीन अब वेब सीरीज़ तो अलग है, फ़िल्म की सीरीज़ भी एक अलग चलती है। तो मैंने वो भी देखी है। And the one of मतलब the favorite मतलब movies that आपका, I used to watch normally is या Motorcycle Diaries. हेलो, Okay. Yeah. Okay, ma'am. कैन यू हियर दैट? Hello, आई ma'am. कैन नॉट हियर। Okay, मैम का वॉइस अभी भी नहीं आ पा रहा है। It's okay. It's okay, it's okay, it's It's a okay. You finish technical your glitch. what you were saying. You finish to that. Yeah. Yeah, not an issue. Not an issue. Yeah, So I it was just happens. saying, yeah, I'm a fan of word cinema. I'm a fan of word cinema. I used to watch word cinema a lot. And then I definitely am a fan of Desi films also. Even I can watch Mr. Ram Rahim forever. Cinema, I just love it. I can So, sense, I can sense कि तुम पूरी तरह से कमर्शियल, पूरी तरह से मतलब उन फिल्मों से इन्फ्लुएंस्ड हो। और मुझे तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से ही ऐसा लग रहा है सौरभ कि यू नो गाता रहे मेरा दिल, बिल्कुल इस टाइप के। आप या आप आप या आप तो ये समझ लीजिए कि कि कोई पूछे तो कह देना छेनू आया था। ओह कोशिश ओह, कर रहा हूँ। ठीक है? अच्छा। तो बहुत सारी यस तो या अभी मैं खामोश तो नहीं बोल सकता किसी को, लेकिन बट यस, कोई पूछे तो कह देना छेनू आया था। और ज़िंदगी और राजेश खन्ना जी से लेकर के अभी जो रिसेंट में आपके जो भी फ़िल्म्स आई हैं, मैं सारी देखना पसंद करता हूँ। बी इट कंटेम्परेरी सिनेमा, अमोल पालेकर सर, और अब तो ख़ैर कंटेम्परेरी सिनेमा और कमर्शियल सिनेमा के बीच गैप कम होता जा रहा है और सिनेमा का दायरा बढ़ता जा रहा है। तो अगेन इट्स अ वेरी गुड डेवलपमेंट दैट वी आर सीइंग टुडे। या और वर्ड सिनेमा की अगर बात करें तो माय फेवरेट फिल्म इज मोटरसाइकिल डायरीज। आई यूज्ड टू वॉच इट। इट्स इन स्पेनिश आई थिंक और फ्रेंच। I don't remember. It's my favorite ओके film, but I ओके, just missed it. ऑलराइट। Yeah. So, what do तो you like to watch in your free time? you're talking about movies, so I have actually would not like to watch, but yes, I have couple of favorite films, and quite likable is Heather, which is my all-time favorite film. Other one is मकबूल। थोड़ा सा मेरा टेस्ट इस तरफ को है, इरफान खान Okay. साहब, पंकज कपूर जी, Mm-hmm. Hmm. नसीरुद्दीन शाह साहब, यशपाल शर्मा सर। मतलब मुझे Okay. मेरा थोड़ा टेस्ट इस तरफ है, और आई हैव बीन डूइंग कपल ऑफ फिल्म्स ऑफ दीज सॉर्ट्स ओनली। अगर आप मेरी I mean, I have been liking being a contemporary or an art kind of a cinema. I've been liking that kind of Okay. Okay. cinema. Okay.
So, does that mean कि you don't watch commercial films? No. It's not like that. I'm a dancer, भाई. Commercial, हम artist हैं. हमें तो जिस ढांचे में डाल दोगे, हम उस तरह से perform कर लेंगे. जिस Exactly, class, exactly. That's what I'm talking about. yeah. But I was just talking about my personal likes and dislikes. Yeah, Uh, yeah. are you into plays or theaters kind of thing, sort of? I'm an actor, Shweta. You don't know about me. I know Very about bad. you. I am Very saying bad. that, do you like it or not? Yes, I do like. I do love doing plays, and I've done plays. I have my own theater group as well, which I've closed. But that's okay. Let's talk about some of the interesting facts regarding Indian cinema. क्योंकि Yeah. मुझे पक्का पता है कि लोग हमारी बातें सुन के बोर होने वाले हैं. नहीं, मुझे नहीं लगता कि बोर हो रहे हैं, इसलिए नहीं हो रहे अच्छा, हैं क्योंकि वी हैव ठीक है. बीन टॉकिंग एक्चुअली व्हाट अब क्या है कि जब टेक्निकल ग्लिचेस आ जाते हैं, टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं, तो एवरीबॉडी नोज कि ऑन द स्पॉट वो भी ऑनलाइन जिसमें आपको 2 विंडोज में लोग बातें करते हुए दिख रहे हैं, तो वो उनके पास ऑप्शन कोई रह नहीं जाता. तो वी हैव टू टॉक एंड वी हैव टू टॉक अबाउट सिनेमा, वी हैव टू टॉक Yeah, अबाउट yeah. या सो पीपल आर क्वाइट aware of the Okay, thing. so let's play a rapid fire. एक छोटा सा rapid fire. I just want to play. Yeah. I'm gonna name an actor, and the very first thought आपके दिमाग में है, you just say it. All right. Or I'm gonna name a film. The very first thought जो आपके दिमाग में है, you say it. Or I'll just say a word. Let's say I'll start with film. All right. Okay, Shah Rukh Khan. What? नाम बताना है. नहीं, शाहरुख खान. दिमाग में क्या आ रहा है आपको शाहरुख खान का? द वेरी फर्स्ट वर्ड कम्स टू योर माइंड, जस्ट से दैट. ओके, शाहरुख खान. स्वदेश. ओके, एंड यशपाल सर. मेरी खुद की फिल्म है, मैं बायस ना हो जाऊं लेकिन मैं बोलूंगी जरूर. मेरी पहली फिल्म उनके साथ थी. मुझे 2 आंसर्स देने हैं. मेरी पहली शॉर्ट फिल्म उनके साथ थी काकपंथ, और दूसरी जो उनकी फिल्म है दैट इज गंगाजल. ऑल टाइम फेवरेट. ऑडियंस आप देख रहे हैं, शी इज सेल्फ प्रमोटिंग हरसेल्फ. वेयर आर No, I'm not. मार्केटिंग कर रही है अपनी बंदी. नजरिया है लोगों का. देखिए. Yeah, and I hope technical team is working on Pratibha ma'am's this thing issue. So yeah, what comes next? Come on. Definitely they are working. And what about Amir Khan? Yes, that is Three Idiots. Three Idiots. Okay. But I'm quite biased about Tare Zameen Par because that has actually changed the perception about kids in my mind. Definitely. Yeah. Ma'am's back. Yeah. Dyslexia. Okay. कुछ तो गड़बड़. Yes. And Yeah. Perfect. गड़बड़ हुआ we are था कुछ having तो. Hello. Yeah, ma'am. We can Yes, hear you ma'am. now. Now we can hear you. Yes. Wow. Thank you. Chuck the fatte. Yeah. Oh. Now we Good can hear evening, you. ma'am. Good evening. आप लोगों ने काफी अच्छा एंटरटेन किया तब तक, जब तक मैं नहीं थी यहाँ. मैं सुन रही थी सब कुछ. मैम, अगर आप थोड़ी और देर आ जाती ना तो यहाँ पे डांस भी हो जाता. हाँ, डांस भी होने करना वाला था पड़ता. अभी, इसलिए मैं जल्दी आ गई. बिल्कुल. So, या मैम, मैम, कैसा लग रहा है मैम आप सारा अपने मेरे सर पे बोल रहे के हैं. शो में? जी. थैंक यू सो मच. आप लोग बहुत अच्छा लेके जा रहे हो शो को. इट्स नेक्स्ट लेवल. Thank you so much. Thank you, ma'am. यस. मैम भी जस्ट हम लोग जानना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा ना BIFF की जर्नी के बारे में बताएं. कहाँ से ये आइडिया आया और आपने ये पूरा साल इसको कैसे आप देखते हैं कि BIFF के लिए पूरा साल कैसा रहा? BIFF अभी 1 साल थोड़ा का सा तो बताएं. बच्चा है, उसकी क्या जर्नी, बहुत छोटी सी जर्नी है. 1 साल का बच्चा है अभी अपना. जी. फिर भी वो छोटी सी जर्नी है, हम चाहते हैं आप बताएं. जी. हाँ, कुछ ऐसे ही. मेरी फिल्म जब फेस्टिवल्स में जा रही थी इधर उधर, बहुत सारी जगह मेरी फिल्म गई है और बहुत सारे अवार्ड्स उसने जीते हैं. डॉक्यूमेंट्री मैंने कोई भी मेरी 4-5 फिल्मों ने काफी सारे अवार्ड्स लिए हैं. तो उस वक्त जब मैं ये देखते जा रही थी कि फेस्टिवल्स ऐसे होते, पर मैं एक बात नोटिस कर रही थी कि यार कुछ होता नहीं है ठीक से यहाँ पे. और मैं जब नासिक गई खास करके, तो मेरे दिमाग में ये आइडिया कौन था कि इतना बड़ा नाम दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल,
और उनके नाम पे मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है वहाँ पे। तो आई थॉट कि इससे अच्छा तो कोई फेस्टिवल हम शुरू करते हैं जिसमें अच्छी फ़िल्में दिखाई जाए ऑडियंस को। ऑडियंस भी तो होनी चाहिए ना, ऑडियंस ही नहीं है जिन शोज़ में 5 ऑडियंस, 10 ऑडियंस, उनके लिए मतलब अगर शो करना है तो फिर क्यों करना है? इतना बड़ा इंटरनेशनल सिनेरियो आप क्रिएट कर रहे हो और उसके लिए ऑडियंस ही नहीं हो तो यू फील सो चीटेड अबाउट। तो जब हम गए वहाँ पे मेरी फ़िल्म का शो हुआ, तो मेरे ख़्याल से 3 लोग थे, मेरा एडिटर, मैं और ऑपरेटर। बस। Yes, ma'am. तो फिर मुझे बहुत ही मतलब बहुत इंसल्टिंग फ़ील हुआ और फूल देने के लिए बस एक लड़की आई और अनाउंस करके चली गई। दैट्स ऑल। और फिर लगा कि अरे यार इससे अच्छा हम करेंगे, इससे बढ़िया शो हम कर सकते हैं। तो वहाँ से दिमाग में मेरे और मेरे एडिटर के दिमाग में वो आइडिया आया। फिर हमने एक दिन मेरी जो एसोसिएट थी उस वक़्त, चारू जी, उनसे मैंने बात किया तो वो कह रही थी कि हाँ, हाँ, हम भी शुरू करते हैं एक फेस्टिवल। तो उन्होंने फिर हमने नाम सर्च करना शुरू किया, फिर नाम सर्च करते-करते बॉलीवुड इंटरनेशनल एक नाम उन्होंने भी दिया। काफ़ी सारे नाम आए थे, उसके बाद हमने बॉलीवुड इंटरनेशनल फिक्स किया और उसको रजिस्टर कर लिया। उसी के उसी दिन जाके रजिस्टर कर लिया और फिर वहाँ से जर्नी शुरू हो गई और फिर तुरंत लॉकडाउन शुरू हो गया। जैसे ही लॉकडाउन शुरू हो गया तो अब हम तो मतलब थिएटर देख रहे हैं, इधर स्पॉन्सर्स देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं और उसके बाद जो लॉकडाउन शुरू हुआ और उसने जो हमें ऐसी की तैसी कर दी उस लॉकडाउन ने, तो लगा कि यार बैठे रहने से अच्छा है कि छोटी-छोटी फ़िल्मों का एक फेस्टिवल करते हैं, शॉर्ट फ़िल्मों का। तो इस तरह से फिर वो एक आइडिया मैंने डेवलप किया और हमने सबने मिलके शुरुआत में चारू जी हमारे साथ थी काफ़ी वक़्त तक, मेरे ख़्याल से 1-2 महीना तो थी। उसके बाद उनकी कुछ अपनी पर्सनल मसरूफ़ियत रही तो शी वाज़ नॉट देयर। फिर हमारी जेम्स बॉन्ड आ गई हमारे साथ और जेम्स बॉन्ड आने के बाद फिर फ़िल्म फेस्टिवल हेवाए बहुत अच्छे से निकल गया टक, 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 टक और बहुत अच्छा काम हो रहा है, मैं देख पा रही हूँ। आप लोगों के चेहरे की जो खुशियाँ है, बहुत सुंदरता है, वो देख पा रही हूँ और फ़िल्में हैं, वो काफ़ी खूबसूरत आई है हमारे पास। मतलब वर्ल्ड वाइड फ़िल्में आई हैं। मैंने इतना सोचा नहीं था। बहुत अच्छा काम हो रहा है एंड आई एम सो हैप्पी फॉर इट। Superb, ma'am. Thank So you. good Thank you to so hear. much. Thank you Good so to much, ma'am. see your mind. Yes. So जी this जी is जी the thing. या मैम जी या मैम एक बात और आगे बढ़ने से पहले आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि सबसे ज्यादा आपको अच्छा क्या लगता है एज एन एक्टर, एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए राइटर, आपको कौन सा काम सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? देखो मैं इस तरह से आर्टिस्ट सोचती हूँ अपने आप को। मैं अपने आप को ये नहीं सोचती हूँ कि मैं एक्टर ही हूँ सिर्फ। मैं आर्टिस्ट सोचती हूँ। जब आप अपने आप को आर्टिस्ट सोचते हो तो दसों दिशाओं में भाग सकते हो, है ना? जब आप सोचते हो कि मैं एक्टर हूँ तो फिर एक्टिंग पे ही कॉन्संट्रेट आपको करके चलना पड़ता है। हालाँकि मैं बहुत अच्छी एक्टर रही हूँ, अपने खुद के गुणगान मैं खुद ही कर रही हूँ। लेकिन उसके बावजूद मुझे 2-2 स्टेट गवर्नमेंट के अवार्ड मिले हैं, बहुत सारे और भी अवार्ड्स जी मिले मैम। हैं, तो उसके बावजूद भी मुझे मेरे फैमिली की वजह से मुझे एक्टिंग करने का मौका नहीं मिला और मैं हो नहीं सकता। तो मैंने तो अपने आप की क्रिएटिव सैटिस्फैक्शन जो है वो दूसरी तरह से आई गेस पूरी समथिंग करी। वेंट रॉन्ग। तो दूसरी तरह से श्वेता, सो आई गेस कि हमें अपने नेक्स्ट जी मैम, जी मैम, आवाज़ सुनाई दे रही? यस मैम, यू वर सेइंग Yeah, yeah, समथिंग। ma'am. Yes, हाँ, please हाँ। हाँ, अब आई तो आवाज आ रही है। what you're saying. मैंने अपनी क्रिएटिव सैटिस्फैक्शन को दिशा दे दी कि इस दिशा में मैं काम करती चली जाऊँगी। उस दिशा में अनेकों मेरे साथ इवेंट्स हुए कि मतलब मैं एक पहल भी बनाया। मैंने एक फाइन ग्रेन फ़िल्म्स बनाया। फाइन ग्रेन फ़िल्म्स
ये नाम रखने के पीछे भी एक बहुत अच्छा ये है सोच है कि मैं जब पढ़ रही थी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन में मुझे जब सर मुझे पढ़ा रहे थे तो उन्होंने मुझे ये बोला कि जो ग्रेन्स होते हैं, फिल्म के जो ग्रेन्स होते हैं वो जिस तरह से फाइन होते चले जाते हैं, तो वो उसके बाद उसका वो जो उसका फाइन ग्रेन जैसे आपकी फिल्म, वैसे उसकी क्वालिटी फाइन होती निकलती जाती चले जाती है। है। ग्रेन्स जैसे जैसे फाइन होते जाते हैं, उसकी क्वालिटी फाइन होती जाती है। उसी जी। दिन मैंने अपने प्रोडक्शन हाउस का नाम सोच लिया कि फाइन ग्रेन फिल्म्स। तो एक तरह से And you have पहल done के बारे में आप good बात work, ही कर ma'am. चुके हैं। जी 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 बिल्कुल जी। तो श्वेता, आई तो गेस कि हमको थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए। जी बढ़िए। it was really And so lovely let's hearing invite. you. Yeah. It was really lovely hearing you, प्रतिभा जी। और आपसे तो इतना ज्ञान, इतना नॉलेज हमें मिल रहा है। इनफैक्ट आप नॉट ओनली यू आर एन एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, यू आर सच अ गुड ह्यूमन बीइंग। मैम, ताली दो हाथों से बजती है, तो मैं आपको और यशपाल जी को एक जैसा मानती हूँ, यूनाइटेड, एक यूनियन एक मानती हूँ। तो एक हाथ से हमारी इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैं दूसरे जो अनदर पिलर ऑफ BIFF है, उनको आमंत्रित करती हूँ। एंड ही इज नन अदर देन आर यशपाल शर्मा जी। कैन वी हैव हिम ऑन द स्क्रीन प्लीज? Guys, talking about Yashpal Sharma Shweta, ji. you have to clap. He is the alumnus of NSD. Shweta, you have to Yeah, clap. I am. You Yes, have to I clap. am. Yeah. So, सर तभी guys, आएंगे। yeah. So, बोलो तो सीटी भी बजा दो, पर मेरे उसमें सीटी बनानी मुझे हाँ, आती नहीं है। आप बजा दो, मैं इनैक्ट कर देती हूँ। And just remember नहीं, one thing, वो मैंने he भी is a bad man on the screen. Yeah. So, Exactly. Yashpal sir, she is calling a bad and man. No, I did not call him a bad man. Listen, मैं बहुत देर से देख रही हूँ कि आप मेरी बातों को और मेरी Please, लेग-पुल बहुत कर रहे हैं। Yeah, so we have Yashpal Sharma sir here. Sir, with us, हेलो, the नमस्कार। couple of PIFF. नमस्कार सर, नमस्कार। Namaskar sir, and सर it is such a मैंने delight to see श्वेता से you वही both. कहा जी, मैंने श्वेता से कहा कि सर फेस्टिवल के माई बाप आ गए। इट्स लाइक यू बोथ आर लाइक फादर, पेरेंट्स हैं आप मेरी आवाज आ रही है क्या? फेस्टिवल के। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, हम आपको सुन पा रहे हैं। Yes sir. जी सर, जी। ओके। तो मैं तो ये कह रहा था कि फेस्टिवल की माई भी यही है, बाप भी यही है। नहीं ऐसा नहीं है। सपोर्टिंग सिस्टम है हमारा ये। जी क्या सर, बात जी। है, बहुत It is बढ़िया। so good to सर see you both ये together. जी देखो, 3 लोग एक साथ बोले तो ऐसा ही होता है। हाँ। नहीं, कुछ नहीं, मैं यही कह रहा था कि it's मैं a सुबह से mutual सुन रहा हूँ और फिल्में भी देख रहा हूँ। मैंने सुबह की 4 फिल्में देखी हैं। माइंड ब्लोइंग फिल्में रही हैं और बहुत ही अच्छा सिलेक्शन रहा है। थैंक यू सो मच सौरभ, शेफाली, ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है। थैंक यू सो मच। एंड आज का भी प्रोग्राम जो है माइंड ब्लोइंग चल रहा है अभी तक। तो अभी हम आ गए, अब देखते हैं क्या होता है। अब दौड़ेगा सर। नहीं सर, अभी भी अच्छा ही चलेगा। अब थोड़ा और ज्यादा अच्छा चलना चाहिए और चलेगा भी, बिकॉज ये आप ही का क्रिएशन है, आप ही लोगों का क्रिएशन है। सर, आपको क्या लगा, आपको हिसाब से कैसी जर्नी रही अभी तक ये BIFF की? ये पूरा साल आपको क्या लगा कि कैसा गया है और हम कहाँ तक उसमें सफल हो पाए अपने मकसद में जो आप लेके चल रहे थे BIFF को लेके? देखिए, कभी भी जो पहला प्रोग्राम होता है ना, तो सफलता असफलता के बारे में सोचना बहुत बेकार बात है। मुझे लगता है कि हमारी कोशिश अच्छी होना बहुत जरूरी है। उसमें कुछ खामियां होंगी, कुछ ये होगा वो होगा, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी नीयत में, हमारी कोशिश में कमी नहीं आनी चाहिए। ये सबसे पहली बात है। और वो हमारी टीम में, जिस तरीके की हमारी टीम है, एकदम सशक्त तरीके से एक दूसरे को कोऑपरेट करने वाली, मुझे लगता है कि हम जैसा भी प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि देखो इतने दिन हो गए,
लॉकडाउन को, ऐसा कभी किसी ने किया नहीं ऐसे। सो इट्स वेरी बिग थिंग। जी सर। Yes, indeed, sir. जी सो ये पास होगा फेल होगा आई डोंट नो, बट मुझे इतना पता है कि वी आर ऑन राइट पाथ एंड बहुत अच्छी सोच के साथ, अच्छी नीयत के साथ वी आर डूइंग ए गुड जॉब फॉर सिनेमा। Yes. यस सर, यस सर। Yes, sir. सो वेरी ब्यूटीफुल मैसेज फ्रॉम यू सर। और आप जो हमको गाइड करते रहे हैं उसके हिसाब से ही हम लोग भी यहाँ तक आए हैं। एंड श्वेता हैज लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू। श्वेता, कुछ आप सर से पूछना चाह रही थी? अब ये क्लास लेके Basically, sir, she is yes, sir, she called you a bad man of cinema. No. So Sir, you also know कि सौरभ जी is, since morning he is pulling my leg and ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ और to be associated with Bollywood International Film Festival। सर, मेरा सवाल आप दोनों से ही है, एक कॉमन सवाल है कि what actually came into your mind when you were having or you were conceiving that idea of this kind of a festival? मैंने आप दोनों के NGOs के बारे में जाना, पढ़ा, तो मुझे एक कॉमन बात नजर आ रही है कि आप लोग के मोटिव्स, आप लोग का हेड बिल्कुल क्लियर है टुवर्ड्स one goal. So could you just elaborate on this film festival idea which you had both in your mind? ये इसी की उपज है तो यही बोलेगी। मैं चाह रही थी कि जो छोटे छोटे फिल्म मेकर्स है उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। और ये क्योंकि हम फिल्म फ्रीवे से ये फिल्म फेस्टिवल करने वाले थे और बहुत हमने शुरुआत में भी ये बहुत क्लियर कह दिया था कि आप मोबाइल से भी अपनी फिल्म बना सकते हैं, वो छोटे छोटे गांव से भी भेज सकते हैं, बिल्कुल रॉ फिल्में भी हमें भेज सकते हैं। अगर वो फिल्म हिंदी में है तो सबटाइटल्स की भी कोई जरूरत नहीं है, ये हमने बहुत क्लियर कह दिया था। तो ये जैसी डायरेक्ट एंट्री आनी चाहिए थी, जैसे एक्सपेक्टेड थी, तो वो बहुत ज्यादा नहीं आई। मोबाइल फिल्मों की जो एंट्रीज थी वो बहुत कम आई। तो मुझे लग रहा था कि ये बहुत आनी चाहिए, पर माइंड ब्लोइंग फिल्में हैं कुछ कुछ, तो बिल्कुल ऐसा लगता नहीं कि ये मोबाइल से बनाई हुई फिल्में है। बाप रे, कमाल की फिल्में हैं। और सबसे बड़ी बात ये है सर, मैम, कि पहले ही सीजन में रिकॉर्ड ब्रेक ही हो गया है क्योंकि 200 अराउंड 200 फिल्म्स वी हैव एक्चुअली रिसीव्ड। यस एंड इट इज रियली टफ टाइम आप लोगों के लिए भी, जी, ज्यूरी के लिए, कि उतनी जो फिल्में आई हैं उसमें से आप लोग कुछ चुनिंदा फिल्मों को सिलेक्ट करें और उनको यहाँ पे शोकेस करें। जब आप सिलेक्ट कर रहे थे या आप फिल्में देख रहे थे, आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि किस तरह से सिलेक्शन हो? आप दोनों अलग अलग इलाबोरेट करिए प्लीज। नहीं, मैं तो ये बताऊंगा कि मैं तो इसका श्रेय पूरा सौरभ को और शेफाली को दूंगा, क्योंकि उन्होंने सारी फिल्में देखी हैं, 180 या 78 जितनी भी आई थी, और सारी फिल्म देख के उन्होंने शॉर्ट लिस्ट की हैं। और मैं अभी तक, क्योंकि मैं 15 मिनट देखता था तो मुझे चक्कर आ जाते थे, और तो मैंने ज्यादा फिल्में नहीं देख पाया हूं मैं। तो जूरी ने देखी हैं सारी फिल्में, जो उनके वो थे, जिस भी शॉर्ट फिल्म मोबाइल के और 3 जो फॉर्मेट थे उन्होंने देखी है और इन्होंने देखी है, और बाकी कुछ लोगों ने देखी होंगी, लेकिन मैं इसमें ज्यादा शामिल नहीं था उस वक्त। मैंने काफी देखी है फिल्में। प्रतिभा ने बहुत देखी है, ये तो दिमाग खाती है। ऑलमोस्ट मैंने देखी ली है वो सारी फिल्में। सर ये आज आपकी बात से प्रूफ हो जाता है कि फीमेल्स हैव ह्यूज पेशेंस एंड परसिवियरेंस। मेरे ख्याल से आज ये बात प्रूफ हो जाती है फिर से कि मैम, जब आप फिल्मों को देख रही थी तब आप कौन से एलिमेंट्स और पैरामीटर्स को मद्देनजर रख के आपने उन फिल्मों को जज किया होगा, अगर जज किया है? देखो, मैं तो एक तो ऑफिशियल जूरी में नहीं हूँ, तो ये सवाल मुझसे करना वो ज्यादा बेहतर होगा कि जो अभी जूरीज आ रही है उनसे करना ज्यादा बेहतर होगा ये सवाल। क्योंकि मैं तो फिल्में देख रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ, और मैं अपनी तरीके से फिल्म देख रही हूँ, मैं उसको जजमेंटल तरीके से फिल्म को नहीं देख रही हूँ, है ना। तो मैं तो मुझे तो बहुत एंजॉयमेंट ये है कि ये फिल्म भी इतनी खूबसूरत है, वो फिल्म भी इतनी खूबसूरत है। मतलब मैं गिल्ट देख रही थी तो आई थॉट कि माय गॉड, कितना डेप्थ के साथ इन्होंने उस थॉट को पकड़ा है
और मुझे बहुत मतलब वो फिल्म टच कर गई मुझे। भाकड़ जो एक फिल्म है वो मतलब मुझे रियली टच कर गई कि वाह मतलब कमाल है ये तो। मतलब मुझे उस बैल के लिए रोना आ रहा था मतलब आंखों में आंसू आ गए मुझे उस बैल के लिए, बाप रे। वैसे ही मुझे प्राणियों से बहुत लगाव है और ऊपर से वो बैल था और वो बोल रहा था यस मैम, एंड सिनेमा तो वही है, वही लैंग्वेज है जो आप बिना बोले भी लोगों तक अपनी दिल की बात, अपने एक्सप्रेशंस, इमोशंस पहुंचा देते हैं। यशपाल सर, आपसे सवाल ये है कि कुछ ऐसे लोग हमारे साथ ऑडियंस जुड़े हुए हैं जो वर्ल्ड सिनेमा के बारे में नहीं जानते, जो सिर्फ फिल्में देखते हैं बट दे डोंट नो व्हाट इज एग्जैक्टली वर्ल्ड सिनेमा इज। कुड यू प्लीज एलैबोरेट ऑन दैट? तो मैं नहीं, सवाल क्या है? सवाल ये है सर, सवाल ही भूल गए वर्ल्ड सिनेमा, वर्ल्ड सिनेमा, ये जो वर्ल्ड सिनेमा जो टर्म है, हमारे ऑडियंसेस, हमारे जो व्यूअर्स हैं, फिल्में देखने के नाम से फिल्में देखते हैं, बट व्हाट एग्जैक्टली इज वर्ल्ड सिनेमा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ल्ड सिनेमा? उसमें नहीं, किस तरह की वर्ल्ड सिनेमा कह के हम आम आदमी को डरा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि डराना चाहिए बड़े बड़े नाम दे करके। सिनेमा है सिनेमा। सिनेमा एक गांव में बना हुआ भी वर्ल्ड सिनेमा हो सकता है। आज जो कुकली फिल्म देखी है, क्या कुकली ही नाम था ना? क्या क्वेश्चन है? जी जी क्या बिल्कुल। वो एक गांव की बनी हुई आदिवासी की इतनी गरीब जगह की, छोटी सी जगह की बनी हुई फिल्म, क्या ये वर्ल्ड सिनेमा नहीं है? तो वर्ल्ड सिनेमा कह करके हम किसी आम दर्शक को हम बहकाएं ना, और हम उनको उनको ये समझ में आए, क्योंकि आज यूट्यूब भरा पड़ा है अच्छे सिनेमा से, भरा पड़ा है शॉर्ट फिल्मों से और सिनेमा से, पुरानी फिल्मों से, यूरोपियन फिल्म सिनेमा से, हर तरह का सिनेमा है उसके अंदर। तो बस सबसे बड़ी बात यह है कि सिनेमा देखने का एक आदत डालना बहुत जरूरी है, वो भी अच्छा सिनेमा देखने का। सिनेमा वो दो ही होता है, एक अच्छा एक बुरा, और जो अच्छा सिनेमा है तो उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। और मुझे लगता है कि आम दर्शक को भी हमें दर्शकों को बढ़ाना है ताकि उनकी आदत पड़े। यही हम हरियाणवी सिनेमा में भी यही कर रहे हैं, और ये भी एक उसका कदम है। जी सर, मैम, दिस इज कॉमन क्वेश्चन फॉर बोथ ऑफ यू। जो यंग और एस्पायरिंग और जो बडिंग फिल्म मेकर्स हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहते हैं व्हेन दे मेक अ फिल्म? आई एम आस्किंग यू दिस बिकॉज यू बोथ आर द डायरेक्टर्स आल्सो। उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए व्हाइल मेकिंग अ फिल्म? बोलो हाँ, तुम नहीं बोलोगी? बोलती हूँ मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि लोग सोचते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, सुविधाएं नहीं है, वो नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि बजट नहीं है वो तो बाद की बात है। पहले आप ये तो बताओ, आपका विचार है क्या? आपके पास कंटेंट है क्या? आइडिया है क्या? आइडिया होना, कंटेंट होना, विचार होना इज मोर इंपॉर्टेंट। सबसे पहले वो, उसमें कंजूसी मत करो। उसमें जो सोच रहे हो, जो 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 चाहिए वो करना चाहिए। और मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अपने जो राजकुमार हिरानी है और मैं, एक जगह नागपुर में हम शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के जज थे, हम जूरी में थे। और कैन यू बिलीव किस तरीके की फिल्म को हमने फर्स्ट प्राइज दिया? एक फोटोग्राफ की एग्जीबिशन लगी है, एक फोटो के ऊपर कैमरा है और उसमें लाल किला लिखा हुआ है और फोटो ब्लैक है। फिर वहां से पैन होता है, ताजमहल लिखा हुआ है और फोटो ब्लैक है। फिर पैन होता है, ऐसे ऐसे करके कुतुब मीनार लिखा हुआ है, फोटो ब्लैक है। इस तरीके से 7, 8, 10 जाने के बाद लास्ट में एक जगह रुकता है कैमरा और वहां लिखा होता है कि नेत्रदान करें, इन्हें आंख चाहिए। अब बताइए, कलेजे में जाके घुसती है बात। तो इसमें पैसा तो नहीं लगा, बिल्कुल पैसा तो नहीं लगा। यंग जनरेशन के जो लोग हैं, आने वाले जो फिल्म मेकर हैं, उनको ये बात जरूरी ध्यान होना चाहिए कि सबसे पहली बात ये ध्यान रखना चाहिए, सिनेमा पैशन से बनता है, पैसों से नहीं। यस। और चाहे मधुर भंडारकर हो, चाहे कोई बड़े बड़े डायरेक्टर के नाम प्रकाश झा, कोई भी हो, जब वो स्ट्रगल के वक्त काम कर रहे थे कम पैसे में, तो उन्होंने बहुत अच्छा सिनेमा बनाया। और जैसे जैसे बड़े बड़े स्टार आते गए और करोड़ों रुपए आता गया, फिल्म सिनेमा खराब होता गया। यस।
बिल्कुल सर, Wonderful, and I think this is सर आपने बहुत बड़ी बात piece of कही advice which, yeah, यस देखा, ये वुमेन पावर है, वो या बोलने ही नहीं बहुत दे रही बड़ी बात सौरभ कही कि तुमको। फिल्में जो है वो, सर आपने मेरे दिल की बात कह दी। हाँ मैं, अरे बोलने दो Thank you भाई so much. उसको। सर हाँ, एक तो वैसे ही मुझे स्क्रीन से बाहर निकाल दिया था, अब आया हाँ, हूँ। मैं देख रही थी सर तुम्हारे बहुत साथ बड़ी बड़ी बात भाषा कही कि हो रही सिनेमा है। जो है पैशन से बनता है। Yes. मैम पैशन से बनता है, पैसों से नहीं। तो Yes. बहुत एक बहुत बड़ा एक मैसेज है, क्योंकि जनरली यही होता है कि बजट नहीं है इसलिए लोग फिल्में नहीं बनाते, सोचते हैं कि पहले बिल्कुल। बजट आएगा फिर हम फिल्म बनाएंगे। तो ये मिसकंसेप्शन है एंड श्वेता आई थिंक वी शुड मूव अहेड फॉर द लेट्स टॉक। जो Yeah. हमारे आज के जूरी हैं, आई गेस अजय ब्रह्मात्मक जी एंड वी हैव विद अस अशोक कुरंग जी। सो या कैन वी have Ajay Brahmatma ji with us? yeah. हाँ On श्वेता, screen, इसमें please. तुम्हारा कोई कसूर I नहीं है, just request. जी ठीक है। वो फ्रेम में ही नहीं थे, डोंट वरी, I तुम कॉन्शियस मत हो। Sir, I need 1 minute technical. This thing issue has come on my laptop because Okay, the okay. battery is dying, and I'll get screen off. So I just put me off the screen for 1 minute, and I get back because I have to charge the laptop. Please just put me off of the screen for 1 minute. okay Technical team. okay Yeah. okay So till Shweta then, wants to till then. Shweta को screen से बाहर करो। Yeah for a minute, she just wants out for a minute. Okay, anybody listening us? Okay, Shweta, you do what is required, you do, and we'll continue. हाँ Okay, श्वेता, आप कैरी ऑन, charge कर लो अपना कैरी ऑन laptop, कर that's लो तुम okay. उसको। Just 1 Yeah. second. That's हाँ। okay. Carry on, Shweta, carry on. It's okay. Yeah. So, yeah, these are some technical issues हैं सर, बड़े shows में हो जाते हैं। सौरभ, यू कैन कैरी ऑन ना। हाँ, you can carry on. जी सर, I guess she is back. And I'm back. Okay, so sir, Welcome back. मैं आपकी फिल्म भी अभी जस्ट रिलीज हुई, दास कैपिटल। या और दास कैपिटल रिलीज हुई। लास्ट टाइम हम लोग दास कैपिटल के बारे में बात कर रहे थे, और अभी ये फेस्टिवल, तो आई गेस कि ये साल सर कुछ बेहतर ही गया है। आपको क्या लगता है, मतलब कंटेंट वाइज आपको क्या लगता है, मेकर्स के लिए नए मौके खड़े हुए हैं, जो प्लेटफॉर्म्स आए हैं नए, और नई नई कहानियों पे काम हो रहा है? व्हाट डू यू थिंक? नहीं, एक्चुअली क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि जो लॉकडाउन था एक तरह से हमें बहुत कुछ सिखा गया है, है ना। तो उसमें क्या हुआ है कि बहुत सारे जो थिंकर्स है या जो सोचते हैं कि फिल्म बनाएंगे, वो जब घर में बैठे हैं तो उनके दिमाग में फिर नए नए आइडियाज कौंधने लगे कि हाँ, इस पे भी फिल्म बनाई जा सकती है, उस पे। अभी कंटेंट वाली फिल्में भी बहुत आ रही है। अभी जैसे हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ है, उस तरह से अगर देखा जाए तो कंटेंट वाली ही फिल्में आ रही है ना। और ये बहुत ही पॉजिटिव बात है सिनेमा के लिए कि कंटेंट फिल्में बननी शुरू हुई है ना। जो हम कल्ट सिनेमा, आर्ट सिनेमा और ये फलाना सिनेमा और इस तरह की बातें जो करते थे, वो अभी ऐसा कोई फर्क नहीं रह गया है। अभी जो इंडिविजुअल फिल्म मेकर्स है वो इतनी कंटेंट वाइज बहुत बढ़िया फिल्में बना रहे हैं कि वी कांट इवन थिंक अबाउट। जो अभी मैं फेस्टिवल में भी देख रही थी, तो बहुत ही कमाल की फिल्में, लॉकडाउन पे कितनी सारी फिल्में हैं। अब जैसे लॉकडाउन में एक बात, मैम कंटेंट अब हीरो हो गया है, दैट इज ये धीमे। जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, नहीं, सौरभ, मैं यही बोल रहा था कि जैसे लॉकडाउन में बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई हैं कि हम लिमिटेड चीजों पे काम चला रहे हैं, चाहे खाने की बात हो, चाहे पहनने की बात हो, चाहे गाड़ियों की बात हो, या कितने भी हमारे मटेरियलिस्टिक चीजें हो, हम कम से कम चीजों में काम चला रहे हैं। और हमें ये एक सीख मिली है, देखो अब एक ही कपड़े में, पजामे में और बनियान में हमने एक हफ्ता गुजारा है, तो
उसी तरीके से ये सिनेमा पर भी लागू होता है। सिनेमा में कम बजट की सिनेमा कैसे बनेगा, घर बैठ के बिल्कुल सिनेमा सर। कैसे बनेगा, और ये बहुत सारा चेंज आया है। और देखिए आप, मैं आपको बता दूं, इतिहास में लिखा जाएगी ये बात कि सिनेमा बिफोर कोरोना एंड सिनेमा आफ्टर कोरोना, क्योंकि एक बहुत खतरनाक चेंज आ रहा है। यस सर। वो प्लस के लिए अभी अजय ब्रह्मात्म जी आएंगे तो वो ज्यादा डिटेल में बता पाएंगे इस बारे में, क्योंकि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म की जो एक संभावनाएं बढ़ी हैं और जो सिनेमा हॉल ऑलमोस्ट वैनिश हो गए हैं इस वक्त, जी। मतलब कोई वैल्यू नहीं रही है उस चीज की। हालांकि सिनेमा का मजा तो हॉल में ही है, पर मेरे हिसाब से जो भी हो रहा है शायद बेटरमेंट के लिए ही हो रहा है। बिल्कुल सर। और सर ये जो वेब सीरीज का ट्रेंड आया है, एक तीसरा एक आयाम खुल गया है, टेलीविजन शो और सिनेमा के बीच का जो एक वेब सीरीज आया है। और रिसेंटली अभी आपकी एक वेब सीरीज भी आई थी, परिवार, जो एक वन ऑफ द हिट सीरीज थी। तो क्या लगता है कि ये जो तीसरा जो आयाम खुला है दर्शकों के लिए या का स्टोरी टेलिंग के लिए, इसका कितना अच्छा प्रभाव पड़ रहा है और ये कितना मतलब हम लोगों के लिए असरदार है कहानियां कहने के लिए, मेकर्स के लिए और दर्शकों के लिए, वेब सीरीज का जो एक दौर चल रहा है? इट्स माइंड ब्लोइंग। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज और ये बढ़ी हैं, संभावनाएं बढ़ी हैं, और नए टैलेंट्स को बहुत काम मिला है। आज अमिताभ, शाहरुख और सलमान के अलावा कितने स्टार पैदा हो गए आप वेब सीरीज में देखिए। आप एक्टर लोग पैदा हो गए, डायरेक्टर भी इवन, है ना। और बहुत संभावनाएं बढ़ी हैं। लेकिन इसकी एक जो गलत सबसे बात मुझे लगती है कि कहीं भी कोई सेंसरशिप नहीं है। वल्गैरिटी, नंगापन और अब्यूजिंग लैंग्वेज, डबल मीनिंग के डायलॉग, सेक्सी सीन और अजीब अजीब से रिश्ते, मतलब बाप बेटी के और इस तरीके के भाई बहनों के, इस तरीके के रिश्ते जो दिखा रहे हैं, दिस इज वेरी रॉन्ग, जो हमको बहुत गलत दिशा में ले जा रहे हैं। और यंग जनरेशन जो है बहुत जल्दी ऐसी चीजों से प्रभावित हो जाती है। बिल्कुल सर, मैं इसी सेंस में पूछ रहा था कि दर्शकों पे उसका एक पॉजिटिव भी एक कंटेंट देखने को मिल रहा है और नेगेटिव साइड भी देखने को हमें मिल रहा है, क्योंकि अनसेंसर्ड है नहीं, क्योंकि तो उसमें कहीं गवर्नमेंट पे का किसी ये तरह है की ना कोई कि रोक टोक भाई नहीं। उस पे सेंसर लगाना है, जिन चीजों पे सेंसर लगाने की जो बात है वो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कंटेंट इंटेंशनली इसलिए इस लॉकडाउन के दौरान इतने दौड़ पड़े हैं, इसलिए इतने गंदे गंदे कंटेंट्स, क्योंकि उनको दर्शकों को कहीं ना कहीं ये लगना शुरू हो जाए कि भाई इस पे कहीं ना कहीं रोक लगे। मेरे ख्याल से वो प्रायोजित लगते हैं, मुझे तो प्रायोजित लगते हैं। चलिए सौरभ भाई, मुझे लगता है कि हम बुलाते हैं अशोक जी को और अजय जी को जी, और टाइम हो गया है। जी 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 सर, बिल्कुल। तो अजय ब्रात्मर सर, योगेश, कैन वी हैव ऑन स्क्रीन? यस, क्या बोलते हैं? स्क्रीन पे अजय ब्रात्मर सर को लाइए। अजय ब्रह्मात्म जी, अशोक पूरंग जी, कैन वी हैव देम ऑन स्क्रीन? ओके, आई गेस वी हैव टेक्निकल इशू चल रहा है कोई। ओके, तो हम टेक्निकल उसमें बहुत डिपेंड हो गए हैं आजकल, सच में। जी सर, वो आप देख रहे हैं कितनी डिपेंडेंसी है। पहले बढ़िया इसको था कुछ यार, नहीं कर सकते सर। हाँ यार, पहले बढ़िया था, चिट्ठी विट्ठी लिखते थे, साइकिल पे जाते थे, सब कुछ हाथों हाथ सब काम हो जाते थे, कोई डाउट नहीं रहता था। सर आपकी एक फिल्म है वेलकम टू सज्जनपुर, वो तो पूरी चिट्ठी के ऊपर ही पूरा बेस थी। यस यस यस। हाँ, वो या आप पूरी फिल्म ही बहुत प्यारी थी। वो चिट्ठी की आपने बात करी तो मुझे याद आ गया, वेलकम टू सज्जनपुर। जी सर, एक चीज और है, जब तक अजय ब्रात्मर सर आ रहे हैं, रियलिस्टिक सिनेमा बहुत कहा जा रहा है, ये वर्ड बहुत यूज होता है, रियलिस्टिक एक्टिंग, रियलिस्टिक सिनेमा। आप दोनों ही एनएसडी से हैं, तो क्या लगता है कि मतलब रियलिस्टिक सिनेमा और एक अलग सिनेमा, अलग एक्टिंग, व्हाट इज दिस? इसको थोड़ा सा बताइए इसके बारे में, कि लोग बहुत कंफ्यूज हैं, जल्दी जल्दी बोलना, गाली देना, क्या ये रियलिस्टिक एक्टिंग है या कुछ और है? मैम प्लीज थोड़ा सा इस पे लाइट डालिए, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे एक्टर्स भी देख रहे होंगे हम लोगों को। तो देखो, शॉर्टकट्स अपनाना तो बड़ा आसान है ना,
किसी जी भी चीज के लिए शॉर्टकट अपनाना कि फटाफट ये मैं बस मुझे बड़ा एक्टर बनना है और मैं इस तरह से मेथड एक्टिंग करता हूँ। ये मेथड एक्टिंग जो शब्द है वो ही मुझे बहुत गलत लगता है। ऐसी कोई जी जी मेथड एक्टिंग एक्टिंग कुछ होती नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आप प्रॉपरली एक्टिंग को सीख रहे हो एक इंस्टीट्यूशन में जाके, तो और अब जब बाहर आते हो तो अगर आप नसीर भाई जैसे एक्टिंग कर रहे हो तो आप मेथड एक्टर हो। आप अमिताभ जी की तरह एक्टिंग कर रहे हो तो आप कमर्शियल एक्टर जी हो। ये कोई मतलब मुझे तो ये क्राइटेरिया ही समझ एग्जैक्टली नहीं मैम, आता। ये जी तो आई हमारे गेस साथ हमारे मेहमान जी अजय परमात्मा जी, आपका आने स्वागत वाले है। हैं। जी 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 अजय ब्रह्मात्मा जी, कैसे हैं? ब्रह्मात्मज ब्रह्मात्मज ब्रह्मात्मज। ब्रह्मात्मज, ब्रह्मात्मा। ये बहुत मुश्किल नाम है। यस, मैं भी बहुत दिनों बाद। वेलकम अजय सर। हाँ, ये जी अच्छा है नमस्ते अजय जी। नमस्ते सर नमस्ते आपकी नमस्ते। शर्ट ओके बहुत सो पसंद है मुझे। हैं? सर आपकी शर्ट मुझे बहुत पसंद आई। चलिए थैंक यू थैंक यू। यस। हाँ, मैचिंग मैचिंग भी है। okay, जी so जी ladies and gentlemen, we have Ajay Brahmatma ji with us, आ, और it's an honor to have you sir. यस हाँ, और And मैं अब आप लोग ये सर लेट्स टॉक होस्ट करेंगे, एंड मेरा यहाँ से निकलने का समय आ गया जी। जी जी जी। ओके अभी तो सौरभ, हाँ अच्छा हाँ, सौरभ गया, सौरभ गया अभी। चलिए ठीक है। हाँ नहीं, बस अजय जी, वो सौरभ ने सवाल पूछा था कि रियलिस्टिक एक्टिंग आपके नजर में क्या है, तो मैंने सोचा ऑडियंस भी वेट कर रही होगी, तो कम से कम 2 लाइन में मैं उसका जवाब तो दे ही दूं, मेरे हिसाब से मैं क्या सोचता हूँ। हाँ दीजिए जी जी बताएं बताएं। हाँ बिल्कुल, मैं जैसे अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो बैंडिट क्वीन को और सत्या फिल्म को मैं बेस मानता हूँ, इस सिनेमा में क्रांति मानता हूँ कि सिनेमा के अंदर जो क्रांति आई है वो एक्टर्स का और अलग तरीके की एक्टिंग का एक एक जो मोड़ आए हैं, वो मोड़ में मानता हूँ इसको, बैंडिट क्वीन को और सत्या फिल्म को। तो मैं धीरे धीरे अब मुझे क्या लगने लगा है कि अगर कमर्शियल एक्टिंग और रियलिस्टिक एक्टिंग नाम की ऐसी कोई चीज नहीं होती है। जो आपको कन्विंस कर जाए, जो आपको कन्विंस कर जाए, जो आप जिससे आप हिल जाओ, जो आपके अंदर इंजेक्ट हो जाए, मुझे लगता है वही रियलिस्टिक एक्टिंग है। क्या अमिताभ बच्चन की वो लाइनें, क्या क्या सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ रियल नहीं लगता है? क्या लगता है भाई, जब बोलता है तो सच में लगता है। तो मेरे हिसाब से वो अब खत्म हो गया है, ब्लेंडिंग हो गई है। जैसे सिनेमा की ब्लेंडिंग हो गई है आर्ट और कमर्शियल की, वैसे रियलिस्टिक और कमर्शियल एक्टिंग का भी ब्लेंडिंग हो गया है। सब कुछ सही होगा अगर सब वो करने पर ऊपर डिपेंड करता है, कन्विंस होना चाहिए बस। यस सो अजय जी, सर। जी अभी आप शुरू कीजिए कुछ। जी सर आप अपनी आप अपने बारे में बताइए कुछ। ये जो फिल्मों की आपकी जो जर्नी है, ये जो प्यार है आपका फिल्मों के प्रति, और उसके साथ आपकी जो बैकग्राउंड है, जिस तरह का आपका बैकग्राउंड है और उस तरह की जेन्युइन से आपकी जो जर्नी शुरू हुई है, और जिस तरह से आपने शुरू किया इस फिल्मों के लिए जो अपनी पूरी जिंदगी दे दी है, तो वो क्या जर्नी है, थोड़ा हमें बताइए सर। नहीं देखिए, बहुत संक्षेप में कि मैं बिहार के एक छोटे से गांव से आता हूं, और अभी जब किसी को बताता हूं तो लोग चौंकते हैं कि मैं लालटेन की रोशनी में पढ़ाई किया करता था और साइकिल से कॉलेज जाया करता था। तो वहां से ये जर्नी शुरू होती है। फिर मैं दिल्ली आ गया था, जेएनयू में पढ़ाई की मैंने। जेएनयू में पढ़ने के बाद कुछ सालों तक मैं ईस्ट एशिया में रहा, मूल रूप से जी चाइना में रहा कुछ सालों तक, वहाँ काम किया मैंने। और फिर लौट के आया तो बॉम्बे में अपना रेगुलर जर्नलिज्म में कर रहा था। लेकिन बाद में ऐसा संयोग बना और आप ही के एनएसडी के हमारे दोस्त इरफान और ईशान, ये 2 लोग मेरे कारण बने जिनकी वजह से मैं फिल्म राइटिंग में घुसा। और फिल्मों में इंटरेस्ट तो हर भारतीय को होता है और हर यस पत्रकार को होता है, लेकिन फिल्म राइटिंग को प्रोफेशन बनाना, इस जर्नलिज्म को प्रोफेशन बनाना, ये बॉम्बे आने के बाद हुआ। मैं बॉम्बे यह सोच कर नहीं आया था कि मैं फिल्म पत्रकार बन जाऊंगा, लेकिन जब आ गया तो शुरू से एक आदत रही है कि जब जो काम हाथ में लिया उसको अच्छी तरीके से समझो और फिर उसमें काम करो। तो इनिशियल डेज में श्याम बेनेगल जी से मेरा अच्छा परिचय हुआ,
और मैं उनके सेट पे जाता था, उनके शूट पे जाता था, और ये सिलसिला जुबैदा तक चलता रहा। 3-4 फिल्मों में मैं उनके साथ उनके शूट पे गया और रहा उनके साथ। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और समझने को मिला सिनेमा का। और फिर मैं धीरे-धीरे दैनिक जागरण, फिर दैनिक भास्कर और फिर से दैनिक जागरण में आया, और फिल्म संपादक के पद से मैं रिटायर हो गया अभी। और अब इंडिपेंडेंट रूप से मैं लिखता पढ़ता हूँ। चवन्नी चैप मेरा एक ब्लॉग है जो बहुत पसंद किया जाता है युवा लोगों के बीच में, क्योंकि वहाँ बहुत ही प्रेरक इंटरव्यूज हैं कुछ। और एक ऐसी बनी यूट्यूब लगान। चैनल है मेरा, सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल। अगर आप में से सुन रहे हैं लोग, कुछ लोग आए सिनेमा हॉल पे, तो वहाँ मेरे व्यूज सुन सकते हैं, रिव्यूज सुन सकते हैं, मैं टॉपिकल अक्सर बातें सुनता करता हूँ हूँ। मैं। जी जी जी, नहीं आप तो मेरे पुराने मित्र हैं, आपका तो कर्तव्य और दायित्व है। खैर, तो ये सारी चीजें छोटी सी जर्नी है, और लेकिन मुझे फिल्मों में काम करते हुए करीब से देखते हुए यह पता चला कि अमूमन भारतीय समाज में, खास करके उत्तर भारत में, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बहुत ही गंदी राय बनी हुई है। और यह राय बनी हुई है कि वो अच्छी जगह नहीं है, और पिछले दिनों इसको और भी प्रचारित किया गया है। बिल्कुल। अगर कुछ बुरे तत्व हैं, तो वो बुरे तत्व उतने परसेंटेज बुरे तत्व पूरे समाज में है, तो सिनेमा में भी उतना ही परसेंटेज होगा। लेकिन बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। हम लोग 107 सालों का हमारा इतिहास है, अपने आप में ये धर्म बन चुका है, रिलीजन बन चुका है, और इसके बगैर तो अब जीना मुश्किल लग रहा है। देखिए, जब सिनेमा घर बंद हुए तो हमने रास्ता जुटा लिया, ओटीटी चले गए। कैसे हम देखेंगे अभी मंदिर, फिल्म? जी, हम मंदिर नहीं जा पाते तो घर में एक मंदिर बिठा लेते हैं। जी जी। तो ये एक घर का मंदिर हो गया है ओटीटी, और बाहर का मंदिर जो है वो सिनेमा घर है। तो अभी बाहर जाके घंटी बजाने का मौका नहीं मिल रहा है, तो हम छोटी सी घंटी लेके उसी को बजाते हैं और पूजा कर रहे हैं अपना। अब तो घंटा बजा रहे हैं सब। हाँ। तो ये बहुत ही जबरदस्त सिनेमा। तो बहुत सारे कलाकार कहते हैं कि एक माँ होती है और एक सिनेमा होता है। तो माँ की तरह ही है सिनेमा, और इससे जुड़ाव हर भारतीय का होता है, मेरा भी है। और आप लोगों को बहुत नजदीक से देखने, समझने और आपके साथ रहने, और आपकी जिजीविषा, आपकी लड़ाई, आपका स्ट्रगल, ये देखते हुए समझ में आया कि ये जो कंगूरे चमकते हैं, उन कंगूरों के असली चमक कहाँ से आती है। कंगूरे के तौर पर जो पॉपुलर स्टार है उनका हम नाम लेते हैं, जिनकी जरूरत नहीं है, लेकिन जो मेहनत करते हैं आप लोग, जिस तरीके से उसको खड़ा करते हैं, बेसिकली आप लोग फिल्म इंडस्ट्री के स्तंभ हैं। आपके बगैर इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो ये बहुत अच्छा लगता है, और कलाकारों से मिलना, उनके साथ बैठना, उनसे बातें करना अच्छा लगता है। 25 सालों का मेरा अपना चटनी कुछ हो गई से, प्रॉब्लम। और मैं देखता रहूंगा सिनेमा। और रिटायर अजय जी। किताबें हैं जी। हाँ हाँ, जी बोलिए बोलिए। हाँ, तो नोटनल पे हैं मेरी किताबें, और यशपाल की वजह से मैं कहूँगा साफ साफ कि ऐसे बनी लगान में लिख पाया। यस, और ऐसे बनी वो लगा। किताब, पता नहीं यशपाल ने मुझ में क्या देखा, नहीं समझा और कैसे हुआ, लेकिन उन्होंने सत्यजीत भटकल से मिलवाया मुझे, और फिर सत्यजीत भटकल को मेरी राइटिंग पसंद आई, और उन्होंने वह काम मुझे सौंपा। ये बहुत बड़ा काम था मेरे लिए, और वह Yes. किताब आज भी पढ़ी जाती है, और खूब पढ़ी जाती है। और मेरा मानना है कि फिल्म मेकिंग पर उससे अच्छी किताब आज तक नहीं लिखी गई। बिल्कुल बाद सही में बात। जी 20 साल हो गए उसको, लेकिन 20 साल के बाद भी कोई दूसरी किताब नहीं आई। सब लोग ग्लैमर स्ट्रक हो जाते हैं, स्टार की बातें करने लगते हैं, फिल्म की बात कोई नहीं करता है। जी जी। उस किताब को पढ़ते हुए आप समझ सकते हैं कि फिल्म कितनी जरूरी होती है। फिल्म एक प्रोजेक्ट है, फिल्म एक मिशन है, और उसको कैसे सारे लोग मिलकर पूरा करते हैं। जी जी अजय जी, मैं एक सवाल मन में था, क्योंकि मैं आपको काफी सालों से देख रहा हूँ। मेरे ख्याल से जागरण फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई थी, उस वक्त की बात है शायद, या उससे भी पहले, मैं नहीं जानता। लेकिन मैंने आपको जितना भी देखा है और आपकी राइटिंग, आपके लेख पढ़े हैं,
तो आपके रिव्यूज पढ़े हैं, जो नई फिल्मों के रिव्यूज होते थे शुक्रवार को जो आते थे, तो मैंने ये देखा है सर कि आपने कभी भी किसी की चापलूसी में नहीं लिखा कुछ भी। यस आपने कभी भी किसी भी, चाहे वो किसी यहाँ कैंप बने हुए होंगे या पत्रकार भी कैंपों के हिस्सा होंगे, लेकिन आपने कभी भी किसी कैंप का ना होकर के स्वतंत्र रूप से लिखा है, और जो जैसी फिल्म है उसका रिव्यू आपने वैसा ही दिया है, और आप आज भी सिनेमा हॉल में वही कर रहे हैं। तो ये एक क्या आग है, ये एक अलग क्यों बनाती है आपको? क्या चीज है ऐसी जो आप कमी देखते हैं यहाँ इंडस्ट्री में? नहीं, एक तो ये है कि एक बेसिक ईमानदारी हमारे अंदर जो परिवार से और परिवेश से मिला है वो काम करती है। मैं ये कहूंगा कि थोड़ा पक्षपात तो मैं करता हूँ, वैसे लोगों से पक्षपात करता हूँ जो लोग उत्तर भारत से आते हैं और जो लोग जिनको अंडरडॉग कहा जाता है, नई प्रतिभाएं जो होती हैं। हाँ जी और मेरा अपना मानना है कि नई प्रतिभाओं को आप अगर बैठने की जगह नहीं देंगे और उनको, हमारे यहाँ मैथिली में कहते हैं, गुदानेंगे नहीं, मतलब उनका महत्व नहीं समझेंगे, तो फिर आप मदद नहीं कर रहे हैं किसी की। रही बात गुणगान करने की और लोकप्रिय सितारों के आगे पीछे घूमने की, तो मुझे तो याद है कि आमिर खान से जो मेरी पहली मुलाकात थी, उस समय उनके पीआरओ ने और तमाम कहा था, यार स्टार हिंदी के पत्रकारों से बात नहीं करते, वो My तुमसे बात नहीं करेगा। हाँ, ओह फिर मैंने कोशिश की, मैं पूरे 3 घंटे बैठा रहा वहां पे, और फिर फाइनली जब 5 मिनट का समय मिला तो वह 5 मिनट 50 मिनट हो गया था। और फिर आमिर खान आपको बुलाए दोबारा, और लगान के समय उन्होंने बुलाया खुद और बातें की, और तमाम जो उसके बाद से आमिर से एक अच्छी दोस्ती है। यशपाल जानते हैं इसको, और कितनी कदर करते हैं। या कोई भी इंडस्ट्री में बेसिक क्या होता है कि पत्रकार बिरादरी जल्दबाजी के चक्कर में और कोई दूसरे उद्देश्य से अगर आती है, यशपाल को मैं इतने दिनों से जानता हूं, मैंने कभी यशपाल से कोई फेवर लेने की कोशिश की हो या कभी कुछ अपना फायदा चाहा हो, इस तरह की अगर बात होती है तो सब कोई समझ जाता है उस बात को। तो आप कुछ दिनों तक चल सकते हैं, 1 साल 2 चल सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं, लेकिन वो इज्जत गंवा देंगे जो आज मैंने हासिल किया हुआ है और जो मिलता है मुझे। तो वो ईमानदारी की वजह से आया है, और ईमानदारी काम को लेकर होनी चाहिए, फिल्म को लेकर होनी चाहिए। और लिख हम किसके लिए रहे हैं? दर्शकों के लिए लिख रहे हैं ना, और जी दर्शक तो हमसे ज्यादा बड़ा समीक्षक है, वो हमारी चालाकियां आसानी से पकड़ लेता है। जी 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 अजय जी, आप कैसे देखते हैं ऐसे फेस्टिवल्स को, जो ये बीफ का जो फेस्टिवल हो रहा है, जी। तो आपकी नजर में कितनी अहमियत है इसकी? मुझे तो लगता है कि फेस्टिवल और ज्यादा हो, छोटे स्तर पर हो, बड़े स्तर पर हो, मझोले स्तर पर हो। अभी पॉसिबल नहीं है कि फिजिकली हम लोग जमा हो सके कहीं पर, कहीं एकत्रित हो सके किसी सिनेमा घर में, तो अभी वर्चुअल चल रहा है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग सिनेमा से जुड़ें और सिनेमा की समझदारी पैदा हो। पिछले कई दशकों से ये हुआ है कि सिनेमा की समझदारी को विकसित करने का, और खास करके हिंदी भाषी समाज में बिल्कुल कोशिश नहीं की गई है। इसलिए आप देखेंगे कि ना तो उधर से निर्देशक आते हैं, ना निर्माता आते हैं, कुछ कलाकार जरूर आ जाते हैं। कलाकार आते हैं इसलिए कि उनकी अपनी जीजीवाशी रहती है, वो अपना कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं। इंस्टीट्यूशनल तरीके से या सोशल तरीके से पूरा उत्तर भारत इसमें मदद नहीं करता है। तो इसको छोटे स्केल पर, बड़े स्केल पर, जैसे भी हो, लेकिन गांव-गांव, कस्बे कस्बे पहुंचाना जरूरी है। अभी फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग बड़े शहरों से, आजकल तो बड़े शहरों से ज्यादा हो गए हैं, अपर मिडिल क्लास के लोग ज्यादा हो गए हैं, लेकिन कस्बों से जो आवाज आती है, छोटे शहरों से जो आवाज आती है, गांवों से जो आवाज आती है, वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ये हम आजादी के तुरंत बाद के 20 सालों में देख सकते हैं, 25 सालों में। और अभी 21st सेंचुरी में भी, जहां पे एक साथ इतने क्रिएटिव माइंड एक्टिव हैं और उन सब पे नजर डालें, तो उसमें से शायद ही कोई फिल्म इंडस्ट्री की पैदाइश, या जिसको हम लोग कहते हैं कि आजकल नेपोटिज्म की पैदाइश हो। आप किसी को भी ले लें, विशाल को ले लें,
आप अनुराग को ले सरकार, लें, हाँ, सुजीत हाँ सरकार दोनों को ले अनुराग लें, को ले लें आप, अनुराग को ले लें, हाँ सही। जी, हाँ, इम्तियाज को ले लें, दिवाकर को ले लें, इतने सारे नाम हैं और ये सारे एक्टिव लोग हैं, सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। अभी Yes. यशपाल आप जो फिल्म बना रहे हैं वह फिल्म अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण फिल्म होगी आने वाले समय में और इतिहास रचेगी, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। मैंने देखा है आपको काम करते हुए और जिस तरीके से मैं खुद परेशान हो जाता था और वैनिटी वैन में जाके बैठ जाता था, 49 टेम्परेचर, कोई बिलीव कर सकता है? 48, उसमें 49, yes. आपके कलाकार और आप लोग काम कर रहे थे बाप और रे, लगातार बहुत काम कर रहे थे, ये नहीं कि 1 या 2 दिन। तो ये सब चीजें उत्तर भारत में ज्यादा से ज्यादा जाएं, लोगों तक पहुंचे और सिर्फ ग्लैमर देख के, सिर्फ सलमान खान को देख के या सिर्फ शाहरुख खान को देख के, उनकी भी मेहनत है। वह ऐसा नहीं है कि वो सलीम खान के बेटे, शाहरुख खान तो किसके बेटे थे आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। तो मेहनत मेहनत लगती है और एक परसिवियरेंस जिसको होता है कि आपकी दृढ़ता बनी रहे, आप टिके रहे अपने काम में लक्ष्य को लेकर के, तो आप कहीं भी कामयाब हो सकते हैं और होना चाहिए। और आप ये जो फेस्टिवल हो रहा है बिफ या इस तरीके के और भी फेस्टिवल हो रहे हैं, वो लोगों तक पहुंचे, लोगों तक जाती हैं तो उनके अंदर एक चेतना आती है। मुझे याद है कि जागरण फिल्म फेस्टिवल से कितने निर्देशक पैदा हुए, फेस्टिवल देखने की वजह से, yes. आप लोगों से मिलने की वजह से। और ये ठीक है कि अभी फिजिकली लोग आपको छू नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर छोटे शहर का कोई टैलेंट आपको सिर्फ छू भर लेता है ना, तो आप समझिए कि आपकी एनर्जी उसमें जा रही होती है, आपकी ऊर्जा उसमें जा रही होती है। इसलिए कई बार मैंने बड़े फिल्म मेकर से हमेशा कहा कि जागरण के साथ आप लोग छोटे शहरों में चलिए। उनको इलाहाबाद ले गया, उनको कानपुर ले गया, पटना ले गया, रांची ले गया, जमशेदपुर, रायपुर, कहा बरेली, जहां जाना 6 घंटे लगते हैं दिल्ली से, बरेली तक हम लोग गए। तो ये सारी चीजें हैं और उनसे फायदा ये हुआ कि वहां से कलाकार आए, वहां से राइटर आए, वहां से निर्देशक आए, ये सारी चीजें हुई है। तो ये फेस्टिवल ऐसे में मदद करता है कि आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और सिनेमा की समझदारी पैदा करता है। जी जी अजय जी, बिल्कुल सही कहा। और आपने जिक्र किया मेरी वाली फिल्म का, तो एक छोटा सा सवाल मेरे मन में आपके लिए निकल रहा है। जैसे प्रतिभा भी अभी एक फिल्म की तैयारी में है, मतलब ऑलमोस्ट शुरू होने वाली है, और मेरी भी फिल्म कंप्लीट हो चुकी है। और इस वक्त सिनेमा हॉल बंद है, मतलब जहां खुले भी हैं तो वहां ऑडियंस नहीं है। सिनेमा हॉल के मालिकों से मैंने बात की हरियाणा में, तो उन्होंने बताया कि हमारा दिमाग खराब है कि हम सिनेमा हॉल खोलें। बोले हाँ, बोले 5 लोग आते हैं, हमारा तो बिजली का खर्चा नहीं निकल पा रहा है, हम कहाँ से इनको तनख्वाह दें, कहाँ से लोगों को, सारे स्टाफ को पैसा दें हैं। और उनकी कमाई सिनेमा की टिकट से ज्यादा उस बर्गर और उससे होती है, कोल्ड ड्रिंक से। और वो बोले वो कोई खरीदने वाला ही नहीं है हमारे पास, तो हम कहाँ से क्या कैसे कमाई पूरा करेंगे। तो ये जो एक दुविधा आन खड़ी हुई है, अब मेरे पास एक बहुत अच्छी फिल्म बन के तैयार है, बैकग्राउंड म्यूजिक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मिक्सिंग हो गई, सब कुछ हो गया, बहुत अच्छी फिल्म, प्यारी सी एक फिल्म बन के तैयार है। अब मैं उसको कहाँ ले जाऊं, या प्रतिभा बनाएगी फिल्म तो वो कहाँ ले जाए, कैसे प्रोड्यूसर को विश्वास दिलाएं कि ओटीटी पे जाएंगे कि हम सिनेमा हॉल में जाएंगे, सिनेमा हॉल में जाएंगे तो कब जाएंगे। ये जो दुविधा आपने, क्योंकि इसके ऊपर काफी बातचीत की है और मंथन किया है, विश्लेषण किया है, सो प्लीज इस बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। नहीं, अभी तो आपकी फिल्म जैसी है, उस फिल्म के लिए तो ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत ही मुफीद जगह है, बहुत अच्छी जगह है, इसलिए कि वहां जाने पर कम से कम लोगों तक पहुंच जाएगी फिल्म। अब डिपेंड करता है कि क्या जो रेगुलर प्लेटफॉर्म्स हैं ओटीटी के, वो एक हरियाणवी फिल्म में इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि बहुत सारे फिल्म मेकर से मैं सुन रहा हूँ कि उनकी फिल्मों के वहां भी थिएटर वाला रवैया ही चल रहा है कि अगर स्टार है आपके पास, अगर नोन चेहरे हैं और कोई लव स्टोरी है या इस तरह का एक्शन ड्रामा है, तो उस तरीके की फिल्मों में उनका इंटरेस्ट ज्यादा है। लेकिन मुझे लगता है कि हाँ ठीक है कि आप
उस तरीके से इंतजार नहीं कर सकते जैसे सूर्यवंशी वाले कर रहे हैं या 83 वाले कर रहे हैं। उनके डीप पॉकेट हैं। हमारे पास, आपके पास इतने डीप पॉकेट नहीं है कि हम लोग इंतजार करें साल भर 2 साल अपनी फिल्म को रोके रखें। तो उसमें अभी जो मुझे लग रहा है कि अभी तो कुछ इंडिपेंडेंट साइट्स भी आ गए हैं जहां मान लीजिए मल्टीप्लेक्स वाले, सॉरी, ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले नहीं ले पाते हैं। तो जैसे सिनेमा प्रेन्योर है, हाँ, जैसे और भी ऐसे जगह हैं, प्लेटफॉर्म है। और कुछ नहीं तो अभी मेरे एक मित्र हैं, राजस्थानी में फिल्म बनाई थी उन्होंने, देदीप्य जोशी, उन्होंने यूट्यूब पर रिलीज कर दी फिल्म, और यूट्यूब पर भी उनके ऑडियंस लाखों पहुंच गई है। हाँ, पैसों का मुनाफा उतना शायद न हो पाए, कम हो पाए, लेकिन दूसरा एक तरीका मुझे ये भी दिखता है जो आंदोलन अपने यहाँ बहुत कम हुआ है, कि आपको अगर फिल्म बनाने में आपको 3 साल लगे हैं तो फिल्म को लोगों तक पहुंचाने में भी 3 महीने लगाइए। आप 3 महीने 6 महीने लगाइए। उसमें मकसद ये होगा कि फिल्म लेकर के हम लोग को चलना पड़ेगा गांव गांव, स्कूल स्कूल, और मेकशिफ्ट प्रोजेक्टर से फिल्म को दिखाना पड़ेगा और वहां पैसे वसूलने पड़ेंगे। और ये लग सकता है कि ये तो लगभग भीख मांगने वाली हालत हो गई, लेकिन नहीं, अभी के माहौल में ये बहुत जरूरी है। अभी भीख मांगना नहीं है, बल्कि एक चेतना जगाना है और लोगों को इसके लिए तैयार करना है कि आप लोग फिल्में देखिए और फिल्मों के लिए पैसे खर्च कीजिए। पूरे उत्तर भारत में बुरी हालत है कि उत्तर भारत के लोग सिनेमा बहुत देखते हैं, लेकिन कोई भी लीगल तरीके से देखने वाले परसेंटेज बहुत कम है। टॉरेंट पे सब लोग मोबाइल पे सिनेमा देखते हैं, सब लोग लैपटॉप पे सिनेमा देखते हैं। तो और जो हिंदी भाषी लोग ये दावा करते हैं कि हमारी वजह से हिंदी सिनेमा चलता है, उन लोगों को ये भ्रम निकाल लेना चाहिए कि हिंदी सिनेमा हिंदी भाषी राज्यों की वजह से चलता है। हिंदी सिनेमा दिल्ली और बंबई की वजह से चलता है। तो सर, हमारे अगर साथ ये फिल्में, जी, हमारे साथ और एक हमारे हाँ गेस्ट, हाँ अजय जी, हम अशोक पुरंग जी का स्वागत करते हैं। बिल्कुल, उनका स्वागत जी है। आपके साथ जूरी में थे, लार्ज शॉर्ट फिल्म की जूरी में आप दोनों। जी, और जी। अशोक जी के लिए योगेश भाई, आप अशोक जी को ले लीजिए अंदर एक विंडो में। बिल्कुल सही कहा अजय जी आपने जी। और ये क्योंकि मेरे भी दिमाग में है कि मैं आम तरीके से तो रिलीज नहीं करूंगा, और करूंगा अगर फिल्म हॉल, सिनेमा हॉल मार्च तक इंतजार करूंगा, और अगर हॉल खुलते हैं और ऑडियंस आती है तो मुझे पता है हरियाणा में इसको और बहुत ऑडियंस मिल सकती है। वो क्योंकि जब शादी में जा सकते हैं तो हॉल में भी जा सकते हैं, और उसके लिए लेकिन, हाँ उसके लिए लेकिन मुझे बहुत पब्लिसिटी करनी पड़ेगी। और मैं एक्चुअली, मेरा तो सिर्फ एग्जांपल दे रहा था, जी, मेरा जी। मतलब ऐसे बहुत सारे लोगों का ये कई हाल है। लोगों जी, से जी, था। जी, जी जी जी। अशोक जी को अंदर ले डिस्कनेक्ट हो लीजिए। गया उनका। अच्छा, नेटवर्क उनका इशू चल रहा है। ये नेटवर्क इशू चलेगा, बहुत चलेगा, ये तो क्योंकि रहेगा। आज हमारा इस पर ही डिपेंड हो गए हैं। तो तुम अजय जी से अगर कुछ पूछना चाहो तो। नहीं, मैंने बहुत कुछ पूछ लिया चलिए है। चलिए ठीक है अजय जी। जी। आपने मेरी फिल्म के कुछ रशीज देखे हैं, आपको लगता है रीजनल सिनेमा जो है, क्योंकि ये अगर आपको शायद मालूम नहीं है, ये फिल्म बनाने के लिए मुझे आपने बहुत इंस्पायर किया है। कि आपने आपने बोला था, मुझे याद है, आप और अजीत राय दो लोग थे बैठे, और आप लोगों ने बोला था कि तुम अपने एरिया में जाकर के काम करो ना, वहां कुछ हुआ ही नहीं है अभी तक। मतलब कुछ हुआ ही नहीं है, एक्सप्लोर नहीं हुआ है हरियाणवी लैंग्वेज और वहां की कथाएं, वहां की चीजें, वहां के लोग उस तरीके से। और आज देखिए आप, बाढ़ आई हुई है। जिसको देखो सुल्तान बना रहे, दंगल बना रहे, तनु वेड्स मनु बना रहे, इतना एक के बाद एक चल रहा है, लेकिन उसकी शूटिंग हरियाणा में नहीं हो रही है। जी, 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 जी। शूटिंग पंजाब में, शूटिंग पूना में, शूटिंग कहीं और थोड़ी सी करके बस बाहर बाहर का लेकर के आउटर, और बाकी सारे जो सीन है वो कहीं और कर लेते हैं। तो जी। बहुत सारा स्ट्रगल चल रहा है रीजनल सिनेमा का। तो मैं यही बस पूछना चाह रहा था कि आपके हिसाब से मैं और मेरे जैसे और कई लोग जो काम कर रहे हैं रीजनल सिनेमा में, क्या आर जी, दे जी। ऑन राइट पाथ? बिल्कुल, बिल्कुल सही रास्ते पे हैं और भविष्य वही है। बस थोड़ा-सा आप लोगों को डिजिटली थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा और डिजिटल के लिए तैयार होना पड़ेगा।
कि दुनिया डिजिटल होने जा रही है, हो चुकी है। है। और हाँ, तो डिजिटल कैसे हो जाए हम लोग जल्दी से जल्दी, और उसको लोगों तक कैसे पहुंचाएं। और ये अभी जाकर के लोगों ने ये शुरू किया है कि यूपी में इंडस्ट्री जाएगी। मैं इस बात को 15 सालों से कह रहा हूँ, आप जानते हैं इस बात को, कि जी। स्थानीय सिनेमा डेवलप होना चाहिए और बम्बई का गढ़ टूटना चाहिए। और सर पर ये आपने टूटना ये भी इसलिए, कहा, सर आपने जी। ये भी कहा, मुझे याद है कि फिल्म इंडस्ट्री कोई खूंटा थोड़ी है जो उखाड़ के ले जाओगे। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा था वो। तो ये असल में खुद की इंडस्ट्री डेवलप हो, खुद की इंडस्ट्री डेवलप हो, वहां के टैलेंट आए। और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, जैसे पिछले दिनों मैं काम कर रहा था प्री इंडिपेंडेंस सिनेमा पर, और मैंने लाहौर और बंगाल का इतिहास पढ़ा और बाकी दूसरे जगहों पर। हुआ क्या कि वहां के उद्योगपति आए। जब उद्योगपति सामने आते हैं, तब जाके निर्देशक और कलाकार और बाकी लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है। और कला हमेशा से सामंतवाद के जमाने में राजाओं पर निर्भर करती आश्रित थी। नहीं है। हाँ। हाँ, तो हमेशा से ऐसा उनको सहयोग चाहिए होता है। कलाकार पैसा नहीं पैदा कर सकता, कलाकार कला पैदा कर सकता है। पैसा तो उसको संस्थाओं से, समाज से, सरकार से लेना होगा। और जैसे आप अपनी फिल्म के लिए जो पैसे जुटाए होंगे, जो भी लोग आए हैं समर्थन में, जिस तरीके से आए हैं, वो अगर स्थानीय स्तर पे हो जाए, हरियाणा में कितना पैसा है लोगों के पास, बहुत। और वहां से लोग आके बंबई के सिनेमा में पैसा लगाते हैं, हरियाणा के सिनेमा में क्यों नहीं पैसा लगा रहे हैं? इस बात के लिए भी मूवमेंट चलाना पड़ेगा, इस बात के लिए अभियान चलाना पड़ेगा। लाहौर में, इसके लिए हाँ, जी जी। लाहौर में 30s में अखबारों में आर्टिकल लिखे जाते थे, उसमें बताया जाता था उद्योगपतियों को कि कैसे आप 100 रुपया लगाओगे तो 6 महीने के अंदर वो 140 रुपया हो जाएगा। तो ये इस तरीके का अभियान चला। और आपको आश्चर्य होगा कि आज हम लोग यहाँ क्राउड फंडिंग की बात करते हैं, एक बहुत अच्छा फ्रेज चल गया है। मैंने लाहौर के अखबारों में विज्ञापन देखा कि कोई प्रोडक्शन कंपनी खड़ी हुई और उसने अखबार में विज्ञापन दिया कि आप लोग 100 रुपये दीजिए मुझे, तब 100 रुपये में काम हो जाता था। 100 रुपये दीजिए हमें, हम वादा करते हैं कि 1 साल के अंदर हम आपको 140 रुपये वापस करेंगे। और इस तरीके से उन्होंने पैसे जमा किए और फिल्में बनाई। क्राउड फंडिंग से। हाँ, क्राउड फंडिंग, तब की क्राउड फंडिंग थी है। यस। अभी भी क्राउड फंडिंग से बहुत सारी फिल्में बनती है सर। बन रही हैं, बिल्कुल। जी जी जी। तो ये जरूरी है कि स्थानीय सिनेमा का विकास हो। स्थानीय सिनेमा में जब तक, जैसे मैं हरियाणा का एग्जांपल लूं, जब तक एक कोई फिल्म सुपरहिट नहीं हो जाएगी, तब तक लोगों को बिलीव नहीं होगा। जैसे क्या हुआ था, चंद्रावल एक हिट हुई थी 84 में, जी जी। और उसके बाद कई लोगों ने जमीनें बेच के फिल्म बनाई, किसी ने घर बेच के फिल्म बनाई, एक शौक में, उनको लगा कि ये अच्छा बिजनेस है। और सच बता रहा हूं, एक भी फिल्म हिट नहीं हुई। और कोई 2-3 फिल्में रही होंगी पूरे 20 साल के वक्फे में, 2-3 फिल्में रही होंगी जिन्होंने सिर्फ पैसा कवर किया होगा। इतना बुरा हाल था फिल्म इस इंडस्ट्री का, हमारी इंडस्ट्री का। तो जब तक कोई एक आध फिल्म एग्जाम्पल सेट नहीं कर देगी, तब तक मुझे लगता है कि लोग पैसा लगाने से भी हिचकेंगे, लोग हर तरह से हिचकेंगे। ये तो किस्मत थी मेरी कि रविंद्र राजावत जी जैसे लोग, जो खुद राजस्थान से हैं और फिर भी उन्होंने मेरे लिए, सवाई माधोपुर के हैं और फिर भी आजकल हरियाणा में रहते हैं, फरीदाबाद में, उन्होंने मतलब पैसा लगाया। फिर बाकी मैंने लगाया जितना लगना था, फिर कुछ उधार लिया करके हम लोगों ने मिलजुल करके एक कर दिया। लेकिन हमने कंप्रोमाइज नहीं किया सर, रीजनल सिनेमा के हिसाब से बहुत अच्छा एक सिनेमा बना दिया हमने। जी सर। मेरे ख्याल से अशोक जी का मुश्किल हो रहा है। अच्छा। सर मैं चाहती हूँ कि अभी जो फिल्में हैं, हमारे फेस्टिवल की जो फिल्में हैं, उसके बारे में आपकी जो भी, मतलब आपने तो जो भी आपने देखी है जो फिल्में, तो आपको क्या लगता है कि एज अ फिल्म मेकर इन जो न्यू टैलेंट जो हमारे साथ उभर रहे हैं, ये जो हमारे साथ है अभी इस फेस्टिवल में, तो उनके लिए आपका क्या संदेश होगा?
देखिए पर्टिकुलर फिल्म का नाम लेना मेरा अभी यहाँ उचित नहीं होगा क्योंकि नहीं मैं होगा। ज्यूरी में था। हाँ, लेकिन ये कहूंगा कि जो फिल्में मैंने देखी उनको देखने से ये जरूर हुआ कि बहुत सारे नई वॉइसेस आ रही हैं और वो कुछ नया कहना चाह रही हैं। उनके पास अपनी कथन शैली भी है। हाँ, सिनेमा मेकिंग वाली मैच्योरिटी उस तरीके से कुछ में नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने इमोशंस पकड़े हैं, और मुझे आश्चर्य हुआ कि लॉकडाउन पीरियड की फिल्में भी हैं। लॉकडाउन भी सब्जेक्ट है बहुत सिनेमा का। ज्यादा है। हाँ। हाँ, तो किस तरीके से लॉकडाउन ने हमारे संबंधों को जोड़ा भी है और तोड़ा भी है, दोनों काम किया है। और जी। उसमें कई खूबसूरत फिल्में देखने को मिली। और ये एक फायदा ये भी हुआ कि अनेक भाषाओं की फिल्में देखी मैंने, सिर्फ हिंदी की नहीं थी। और बाहर की भी फिल्में थी, मलयालम भी थी और भी दूसरे लैंग्वेज की थी, विदेशों की थी। तो उन फिल्मों को देखते हुए साफ दिख रहा है कि सिनेमा वही नहीं है जो हिंदी सिनेमा, पॉपुलर सिनेमा दिखाता है। सिनेमा और भी इमोशंस को लेके चलते हैं, और ये बहुत जरूरी काम हुआ है बिफ की तरफ से कि ऐसे नए निर्देशकों को आपने मौका दिया है अपनी फिल्में यहाँ सबमिट करने का। और इनमें जिसको पुरस्कार मिला है उसको तो बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, जिनको पुरस्कार नहीं मिला है उनको भी इस बात का गम नहीं होना चाहिए कि हमारी फिल्म पिछड़ गई या रह गई। फिल्म आपकी भी उतनी ही अच्छी है कि भाई नामांकित हुई, यहाँ तक आई, उसके बाद आपने क्वालिफाई किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। ओलंपिक में जीतना जरूरी नहीं होता है, हमेशा ओलंपिक में शामिल होना भी जरूरी होता है। जी 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 पहले तो ओलंपिक में शामिल होने के लिए क्वालिफाई करना पड़ता है। तो जी। ये फिल्में क्वालिफाई होके यहाँ तक आई और फिल्में देखी हमने, और देखने के बाद से हमने जिन फिल्मों को अवार्ड के लिए योग्य समझा है उस पर हम लोग, मेरे अपनी राय रखी, अशोक जी ने अपनी राय रखी, और उसके एक सर्वानुमति से एक पुरस्कार तय किया जाएगा और फिर देखते हैं कैसे क्या होता है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। अच्छा अनुभव इसलिए हुआ कि हम लोग जो रेगुलर सिनेमा देखते हैं उससे अलग कुछ मिला मुझे। जी सर। सर अभी हमारे साथ हमारे जो होस्ट है इस शो के श्वेता और सौरभ, वो हमें ज्वाइन होंगे। आइए श्वेता और सौरभ जल्दी से आइए। मैंने तो अजय जी आज 4 फिल्में देखी, मैं तो दंग रह गया, मजा आ गया मुझे देख करके। एक बंगाली फिल्म थी, एक कुकली करके थी, एक बम्बू बम्बू कुछ था नाम, बहुत अच्छी लगी। एक डिफेंसलेस थी। 4 फिल्में देखी। बैम्बू बैलेट बहुत बढ़िया लगी सर मुझे, बैम्बू म्यूजिकल फिल्म थी और मजा आया देख करके। वेलकम वेलकम श्वेता, वेलकम सौरभ। गुड इवनिंग सर। आपके थैंक पेट यू की सर। बात हमारी थोड़ी देर हमने एंकरिंग की। प्लीज कैरी ऑन। It was a delight hearing you all और बहुत कुछ सुनने को समझने को मिला सर। जी, आपका जो इंटरेक्शन था सर दैट वाज क्वाइट इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ अस, और हमें काफी जानकारियां मिली, खासतौर से अजय सर आपने जो भी एक्सपीरियंसेस अपने शेयर किए ना, दैट इज क्वाइट ऑसम। और मैं सच बताऊं, मैंने आपके बारे आवाज गई। देखिए मैं अपनी तारीफ सुनने से भूल गया, छोड़ रह गया। नहीं सर, मैं उसकी भरपाई कर देती हूँ। एंड सर बोलिए। दोनों ओके सर, आई जस्ट से कि अजय सर मैं आपके घर भी आया हूँ, आया हूँ, एंड आई मेट यू पर्सनली। आई जस्ट नो दैट वो थोड़ा साल पहले था, आई डोंट नो रिमेम्बर और नॉट, बट यस आई हैव मेट यू, आई हैव गॉट दिस चांस टू मीट यू, तो इट्स एन ऑनर टू हैव यू सर। और अब श्वेता की अगली आवाज। जी थैंक यू सौरभ। कोशिश हम दोनों की यही रहती है कि हम एक बार में एक ही इंसान बोले, बट इस टेक्नोलॉजी का क्या करें, क्योंकि हम बोलते हैं लेकिन हमारी ओवरलैप हो जाती है आवाज, तो जो थर्ड ऑडियंस है वो उसे लगता है कि वी आर टॉकिंग टुगेदर। नेवर माइंड। सर बहुत अच्छा लगा आपको, आप तीनों को सुन के बहुत नॉलेज मिला, बहुत इंफॉर्मेटिव था। अजय सर, हालांकि हमारे सारे सवाल प्रतिभा मैम ने और यशपाल सर ने पूछ लिए हैं,
मैं सिर्फ आपसे वो मैसेज आपके थ्रू अपने ऑडियंस तक पहुंचाना चाहती हूँ थ्रू BIFF। आप इन फिल्म मेकर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो हो गया सवाल। हाँ, वो हो गया। वैसे फिल्म मेकर्स को तो अलग से कुछ खास मैसेज क्या दिया जाए, लेकिन यही है कि वो फिल्म मेकिंग में लगे रहें और तुरंत किसी अवार्ड की और उससे बहुत बड़ी कमाई की उम्मीद न करें। ये एक प्रोफेशन है और राइटिंग पैशन है, और पैशन तो बहुत जरूरी है, उसके बगैर तो फिल्में नहीं बन सकती और आगे नहीं जा सकती। अगर सिर्फ पैसों से फिल्म बनती तो टाटा बिरला सब फिल्म मेकर हो गए रहते। जी सर, अभी हम आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सर, और हम अगली हमारी जो फिल्म है मोबाइल फिल्म उसकी तरफ बढ़ते हैं। श्वेता जी। और सौरभ हमें उस तरफ लेके जाएंगे। जी जी, थैंक यू वेरी मच शुक्रिया। अजय जी, शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक चलो, यू सो मच जी। बहुत ही अच्छा रहा। चलिए, जी हम तो So जा ही नहीं unfortunately, सकते we are जब तक वो नहीं जी। भेजेंगे। नहीं आपको तो रहना है, मैं निकलता हूँ। मैं नहीं नहीं, you, हमें sir. भी Thank नहीं you. रहना Thank है, you so हमें भी much, जाना sir. है। Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. हाँ, थैंक यू अजय जी। हाँ, ओके, कैरी ऑन। Yes, we also leaving. Thank you, sir. We're going to soon catch you, sir and ma'am. So Saurabh, it was such an informative session, and Ji, thank you, sir. unfortunately, Thank you. because of the technology, Yeah, I'll, because of the okay. technical. So, ladies and gentlemen, yes, yes. This is what is happening actually. We are missing out each other's voice. Yeah. Never mind. Technical Because of glitch, technical issue, Yeah, so due to technical issue, we missed interaction with Ashok Purandri in the Let's Talk show. We would manage to call him, invite him in the upcoming talk show soon, maybe tomorrow or day after, depending upon his availability. But we are really grateful and thanks to Ajay sir that he has actually imparted and has shared such knowledge which was actually not was with us. And unfortunately, we need to share the information that there was a strong glitch in the Facebook this thing, and suddenly I think Saurabh, you need to tell this because only YouTube is working and the Facebook part isn't working, I guess. So the audiences, those who were connected with us through Facebook, are unable to comment or see this section. Maybe when this is backed up, we would put this session on YouTube, and then those who have missed it could see that. So I think now Saurabh's sound has gone. Okay. I'm speaking. I can hear you. Yeah, I can hear you. I cannot. I can I hear cannot. you. I'm listening you. Yeah, can't hear me. I don't know. Maybe. Okay, now can you hear me? Yeah. Now can you hear me? Okay, let's just close this. Guys, we have some technical glitch on our Facebook account, so we're gonna stop the streaming for 10 minutes, 10 to 15 minutes. We'll be back soon with our streaming of mobile films category. So stay tuned with us. Don't go anywhere. Just give us 15 minutes. There is some technical glitch, and we're gonna stop streaming for 15 minutes. That's it. Thank you. We'll be back soon. We'll be back soon. We are facing some technical problems with Facebook.